So today we'll be learning what is Cloud ALM, what is it behind, what are the previous versions of it, why it is needed, everything, and how to get the Cloud ALM for yourself. Suppose your company says that request for a Cloud ALM tenant since you work on the PMO, they might be asking you in some other time. I mean, if you go into some other organization, everywhere. So I will tell you how it is done and how the users are added into the Cloud ALM and how the Cloud ALM dashboard looks and about the user administration part in the Cloud LM, assigning roles to the user, creating users, deactivating users, those So things. I think I sent the agenda in the message. Did you get it? Yeah, I got it. Right. Good. So that's the agenda, right? That's one. Yeah, I'm covering those Second, things only. second is two main points here. Number one is I am not interested in a high level information because there I probably either know or I can get it. Okay. My whole purpose with to utilize your time in a best manner is In the to tool. get it. I like I told you, I'm working in Cloud ALM right now, so Okay. I have tasks, right? They're giving me work to do. So Okay. I don't need to know like what was the last version and this and that. That's not important right now. You need to get me in and you need to show me, okay, in a very short term, this is how Cloud LM work, this is what it is. But let's get in. This is like you said, dashboard, and then just get in and say, hey, as a PM, these are the things can be done. This is you should be doing it. Uh, Okay. you So follow what I mean? yeah, you got it. So currently you're planning for a migration and they are going to use the Cloud LM for to track the project activities which you're going to do. This is what So, you're going to do. so no. So what they're doing it is they have this is a very, very, very complex world of this company where I'm working with, right? So Okay. what they're trying to do, they are migrating SAP system to SAP for HANA, Okay. On cloud. and right in on cloud, right? That's what they're Yeah. doing. And Yeah. with that, they also purchased, whatever the cloud ALM license, I believe, right? Okay. And they want all the processes and all the project throughout the company. They want everything run from the PMO side in the cloud ALM. So they want to do a project management in a cloud ALM. They want to do a documentation archiving, everything. So whatever the artifacts out there, doesn't matter what you use to create, they want to hold in cloud ALM, and they want to through all the process, the process owner, who are the product owner, whatever you call, they define some kind of process for individual work, right? Yeah, got So it, they got it, want got to it. capture that process in cloud And ALM. you want to track that task whether how much percent is Right. So completed, they're going to who is use working on it. ओके या बस आपको पूरा ये वाला सीखना है इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट साइड का पीएमओ रोल्स का सब है आपको टेस्ट केस एंड टू एंड पूरा ओके यहाँ आज तो यहीं से शुरू करते हैं, फिर वो और एडमिन वाला और कल देख लेंगे। और आपको काम एडमिन बनना है तो ऑपरेशंस पार्ट सीखना पड़ेगा ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब यूजर मैनेजमेंट आएगा क्योंकि मैं प्रोजेक्ट का मेन आदमी नहीं हूँ वो सिर्फ प्रोजेक्ट का मेन पीएमओ के पास रहता है यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल ठीक क्योंकि आपको मिलना चाहिए था क्योंकि आप पीएमओ है ना फिर भी सिखा दूंगा आपको डेमो अकाउंट में समझ आ ठीक जाएगा है। मुझे ठीक। एक्सेस नहीं चलो अभी आप ओवरव्यू से तो शुरू करो। अभी स्क्रीन दिख रहा है अभी जी, दिख रहा है, दर्शन दिख रहा है। जी, पीपीटी दिख रहा है क्या ये आपको दिखा लाइव दिख रहा है आपका डैशबोर्ड, माय होम इम्प्लीमेंटेशन। एक सेकंड ओके सो क्लाउड एलएम ना एक एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल है मतलब आप एक एप्लीकेशन है आपके पास वो स्टार्टिंग से एंड को उसको मॉनिटर करना पड़ेगा मतलब डिजाइन बिल्ड डिप्लॉय और गो लाइव होने के बाद उसको सपोर्ट वो सब भी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल है समझे ना मतलब ये जी, सब बेसिक चीज है फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि अभी सोल्यूशन मैनेजर है हमारा एसएपी में क्लाउड एलएम टूल अभी सोल्यूशन मैनेजर फिलहाल के लिए जी, जी, वो ये मुझे सिर्फ पता है। सोल्यूशन हाँ मैनेजर रिटायर हो रहा है हाँ 27 में, correct, ये नया हाँ आया है, ये मुझे हाँ, पता है। ये सब बेसिक है थोड़ा सा ज्यादा नहीं आपको पता होना ठीक है, चाहिए ये ठीक है, बता ठीक है। और मैंने कहा ना मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। हाँ गुड गुड मुझे पता है ये सब नहीं पता है इसलिए ऐड कर दिया कोई बात नहीं
मतलब अभी ये सोल्यूशन मैनेजर 2027 में एंड हो रहा है, और ये ऑन हम्म, प्रीमाइज है, अभी सब लोग क्लाउड में जा रहे हैं। इसलिए एसएपी ने अभी क्लाउड प्रोडक्ट्स के लिए क्लाउड एलएम करके एक नया प्रोडक्ट बनाए, सिमिलर टू सोल्यूशन मैनेजर। सोल्यूशन मैनेजर हम्म, ऑन प्रीमाइज का टूल है, क्लाउड एलएम अभी एस फोर आना उसके लिए बना गया टूल है, सभी फीचर सेम है, और ये सब थोड़ा एडवांस्ड है, ये क्लाउड एलएम टूल। ओके, ठीक। और ये अरे इफ सब इज इजी फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। So yeah, so if you, SAP is going to end the maintenance for solution manager. Now they have bought a new product, Cloud LM, which is not completely ready product. Still, a lot of features are pending there. So currently they're working on their by 2027 this tool will be ready. So currently they're pushing all their customers to use Cloud LM instead of solution manager who's migrating into S4HANA Cloud. So this will be the future current ALM tool for all the SAP application. One solution manager retires in 2027, and they give extended maintenance till 2030 if they want. So, okay, and currently this is their solution manager, and we have focused run also as an application lifecycle management tool, and we have Cloud ALM also. So this is solution manager is getting retired, and focused run is for huge customers who has more than 10,000 customers and who have heavy load of data and who cannot monitor small size of data. And here it only captures the operations part, the monitoring part. You can't do all the implementation part and all in this. You can do the implementation part and the administration operations part in this also in Cloud ILM. So in focused run and solution manager, we use diagnostic agents to collect data. But in Cloud ILM, we don't use anything. It's only push-pull metrics. It's APIs, application programming APIs. Okay, so हम्म, this is what it is. So currently in future, we're gonna use Cloud ILM if your customers are less, and if you want to use both implementation part and operations part, it's Cloud ILM. And if you want only operations part and you have huge data monitoring data to monitor, then you'll use focused run. So this is the basic overview, and I hope you know this. So I just wanted to tell this. Okay. So next, again, cloud. You know about BTP and all, right? नो आई डोंट नो। Okay. So और अभी भी मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी आप, मुझे पता है इंशाल्लाह यू विल कवर इट, बट yeah. जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अभी भी मेरी 100% नहीं है। कि आप मुझे Okay. बोलो कि आप मुझे बताओ क्लाउड एलएम क्या है, क्यों यूज करते हैं ना, तो वो अभी है नहीं, तो होपफुली ये स्लाइड के बाद शायद मुझे हाँ समझ में ये आए। सब ये साइड के बाद पता चले। ओके, क्लाउड एलएम। जैसे आप मुझे पूछो ना कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो मैं आपको हाई लेवल पे बता सकता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो क्लाउड एलएम की मुझे भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीरो हाँ नॉलेज है। ओके, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी क्लाउड एलएम वो आपको पता ना चलने के लिए आपको एसएपी बीटीपी का थोड़ा बताना चले, क्योंकि क्लाउड एलएम इज बिल्ट ऑन एसएपी बीटीपी। ओके, ओके। so SAP BTP is nothing but business technology platform. Means it's a platform as a service for business. Suppose suppose you're planning to do some business. Suppose you're doing some application, those things, and you want everything to be monitor, everything to be given by some other person. For example, SAP. They will monitor your infrastructure. They will monitor your services. They will monitor your solutions. Everything they will provide. You don't have to worry anything. You just have to go into there and build your business. Like even they have the code for your development, whatever you want to do, everything they have built in. So infrastructure, OS, software requirements, hardware requirements, everything is pre-built in this SAP BTP. It is nothing but a platform as a service. You understood, ओके, right? तो मेरा क्वेश्चन ये है, लेट मी रिपीट दैट इन अ डिफरेंट एनोलॉजी एंड यू टेल मी कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं। Okay. सो बिल्कुल ऐसा है, जैसा मान लो कि आपको वेबसाइट बनानी है अपनी और वेबसाइट पब्लिश करनी है, तो Hmm. आप खुद भी कर सकते हो इंडिविजुअल ऑपरेशन और टास्क यूज करके, या फिर आप गो डैडी को बोल सकते हो कि आप मेरा डोमेन भी रजिस्टर कर दो, आप मेरे लिए सर्वर भी बना दो, आप मेरी वेबसाइट भी बना दो, आप मेरे लिए मार्केटिंग भी करो। आपने सब उनको दे दिया और अब आप Hmm. सिर्फ अपना बिजनेस रन कर रहे हो, एंड दे कैन डू ऑल दैट। गोडैडी या शॉपिफाई, Correct, इसी इस correct, तरह correct. आप कह रहे Yeah, हो yeah, बिजनेस, yeah, correct. That is similar to that. बिजनेस Correct. एप्लीकेशंस के लिए आप
सैप को बोल दो कि मेरा ये बिजनेस है, हाँ, मुझे पूरा टेक्निकल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो वो सब कुछ आपको रेडी करके ऐसे देंगे। एंड दैट्स दे यूज, दिस इज दे कॉल बीटीपी, बीटीपी बिजनेस बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ओके, एसएपी बीटीपी। ओके, समझ गए ना आप? ठीक से समझ रहे हो? आप बताएं कि मेरे को सही हाँ समझा हाँ, रहा हूँ मैं समझ आपको? गया। हाँ, करेक्ट करेक्ट, इट्स लाइक GoDaddy ओनली, बट दिस इज इनटू दी ओनली फॉर एसएपी एप्लीकेशन, नॉट फॉर अदर एप्लीकेशन, only for ओके, SAP applications, like S4HANA, those things and all. जैसे And जैसे शॉपिफाई, राइट? आई कैन uh, शॉपिफाई, ओके, समझ गया। सो Shopify जैसा, लेकिन ये आप पूरा कोड सब आपको रहता है, क्योंकि इधर सब बिजनेस प्रोसेस सब अलग रहता है, मटेरियल जी जी मैनेजमेंट, फाइनेंस, जी वो सब अलग अलग प्रोसेस रहता है, प्रोक्योरमेंट, एचआर, वो सब रहता है अलग अलग मॉड्यूल के लिए। बिजनेस बिजनेस अलग अलग कोडिंग रखते हैं लोग। और ये आप कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वही लोग कुछ बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम करके रखते हैं, ये प्रोसेस फॉलो करो, वो लोग माइग्रेशन पे हेल्प करेंगे, सब वही लोग देख लेंगे। आपको बस सिर्फ बोलना है क्या चाहिए। अगर तुम अब कुछ चेंजेस करना है आपको बिजनेस, मतलब आपके ही बंदे को रख के, मतलब अब यू वांट टू वर्क ओनली ऑन द डिजाइन पार्ट, like design part, if you want to change any function in your business, those things you need to keep this person, you want them to work for it. Rest all infrastructure, everything is maintained by them. लिटिल कोडिंग पार्ट बिजनेस, मतलब वही थोड़ा टेक्निकल काम आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के, तो वो आप आपकी टीम को देखना पड़ेगा, बाकी सब ये लोग मैनेज करेंगे। ओके। तो अब मुझे जो मेरी कंपनी करंट, उसमें क्या हो रहा है कि एसएपी ने वो लाइसेंस दे दिया है, टूल दे दिया है, और वो ये जो मेरा मैनेजर है इसको दे दिया है। ये है वो बंदा जो आप बोल रहे हो ना, ये हम्म, बंदा सेटअप कर रहा है सारा कि कौन क्या हम्म। करेगा, क्योंकि ये मेन बंदा ये है। मतलब जब वो एसएपी का क्लाउड एएलएम की बात करते हैं, तो वो इसकी बात करते हैं। ओके, मतलब एसएपी, एसएपी बीटीपी अगर आपने ले लिया तो क्लाउड एलएम फ्री है, वो सॉफ्टवेयर एज हाँ, ए सर्विस वो है। एग्जैक्टली, तो ये कंपनी ने वो एसएपी बीटीपी मेरे ख्याल से लिया है, और ये लिया है, क्लाउड एएलएम नहीं जो तो है क्लाउड उसका एलएम आप सारा बना ही नहीं सकते। पार्ट ये है। हाँ, ओके, आपको समझ गया ना बीटीपी? सो इफ हाँ एनीबॉडी हाँ जी जी। wants to know about cloud lm, it resides on SAP btp, so you should know btp part. Okay, so let's go to cloud lm. So it's a cloud application that was built by SAP from scratch and it is hosted on SAP btp. Okay, इसलिए मैंने बोला आपको SAP btp चाहिए करके। ठीक ठीक। But SAP BTP is nothing but a concept of the big package that you sign up with them, करेक्ट which करेक्ट, इट which गिव्स gives you एवरीथिंग। all the technology and whistles and bells to run your business. Yeah, correct, that's what I'm telling, no? It's SAP Cloud LLM is a software as a service. This is platform as a service. Inside that, there's a software called SAP Cloud LLM. Okay, Okay. so this is a software which is used to maintain all your application lifecycle management. Like आपका application है ना, मतलब जो आप बना रहे हो, उसको आप डिजाइन बिल्ड वो सब एंड से ट्रैक करता है, और वो एप्लीकेशन लाइव जाने के बाद कितना डेटा आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब मॉनिटरिंग पार्ट है ना, एडमिन पार्ट, वो भी इसमें देख सकते हैं। दैट ऑल्सो वी कैन सी इन दिस। In the cloud LM. करेक्ट, इन द क्लाउड। So SAP handles services, maintenance, infrastructure, and updates, providing continuous and new functionality without requiring customers to perform setup or maintenance. आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका फंक्शनलिटीज आप एक बार डाल देना है इसके अंदर। अगर कुछ चेंजेस है तो आपको एक बंदे को रखना है, वो बिजनेस की चेंजेस रखना है, बाकी कोई आप टेंशन ही नहीं ले सकते, सब एसएपी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय एसएपी। सो एवरीबडी wants to use SAP Cloud and less tension, less this thing, everything. You just need to focus on main technical work which needs to be done for your business. Rest all things will be taken care by SAP Cloud AI. So BTP is a platform as a service, and inside that you will find SAP Cloud LM is a software as a service. And in this, so you can see it is designed to support customers for running their SAP applications on cloud. मतलब आप एक एसएपी एप्लीकेशन बनाया, समझ लो आप मटेरियल मैनेजमेंट बोल रहे हो, उसके लिए एक ऐप एप्लीकेशन होगा, उसको आप क्लाउड के ऊपर डालेंगे। ये सब डालने के बाद बीटीपी के अंदर डालोगे, पहले बीटीपी के अंदर डालने के बाद वो बीटीपी वो सिस्टम को हम क्लाउड एलएम के अंदर डालेंगे, क्योंकि सब मॉनिटर करना पड़ेगा ना आपको एप्लीकेशन को। फर्स्ट बीटीपी के ऊपर उसको बिल्ड करेंगे, और मॉनिटरिंग करने के लिए आपको क्लाउड एलएम में आना पड़ेगा। समझ गए ना? जी जी।
कुछ डाउट आ रहा तो पूछो, मैं बता दूंगा। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो, अभी तो मैं मतलब अभी नाउ यू गोना ड्राइव, आई एम लिसनिंग। Okay. So it covers various aspects of application lifecycle like project management, which you are involved in currently, implementation, design part, you need to do the testing, you need to do collection of tasks from the user, like what all my application wants, those things and all will be covered in this. And operations part, operations मतलब वही system go live होने के बाद क्या क्या वो दिखाता हूँ मैं बाद में। और ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपको कुछ चेंजेस रहना, इफ यू वांट एनी चेंजेस इन योर बिजनेस, यू वांट एनी सेमी ऑटोमेशन, those things and all will be can be done in SAP Cloud Island. Okay, and it is ओके, free. If you subscribe for BTP, this license is given by automatically. There is no need to buy तो extra. तो अभी मुझे से एक बात समझ आई आपके बताने से। तो बेसिकली ये, अच्छा आप मुझे ना बोलते रहा करो कि अब्दुल रिपीट करो, ताकि मैं आपको, अगर मैं आपको समझा सका तो मतलब ये कि मुझे समझ आ गया। ओके ओके। तो कोई भी कंपनी को बीटीपी जो है उसको लेकर साइन अप करना पड़ेगा एसएपी के साथ, हाँ जिसमें ये क्लाउड एएलएम फ्री देंगे वो आपको। और करेक्ट। क्लाउड एएलएम जो है वो, what it does is basically manage all the components including project management, implementation, operation optimization for the application life cycle. So for example, अगर वो कंपनी को मटेरियल मैनेजमेंट का कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर बनाना है सेप कोड यूज करके, या वो मटेरियल का जो मॉड्यूल है उसको लेके इम्प्लीमेंट करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो सारी की सारी जो एफर्ट है एंड टू एंड, हाँ ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी सारा पीसेस और इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग टेस्टिंग वेस्टिंग, ये सब आप क्लाउड एलएम के अंदर कर सकते हो। और ट्रैक कर सकते हो कि ये कौन सी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसे बिल्ड कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, पूरा उसका आप उसके अंदर देख सकते हो। और ये क्लाउड करेक्ट। एलएम की जो जो पैकेज है, सॉफ्टवेयर है, ये जो हम्म। कंपोनेंट, ये बीटीपी का लाइसेंस अगर आप लेते हो तो ये फ्री है। और फ्री। इसमें भी आप ऐसे बिल्ड कर सकते हो, जैसे एक एप्लीकेशन एग्जाम्पल लेके आप ये एंड टू एंड ट्रैक कर सकते हो। और उसके बाद आप जितनी भी जो भी चाहे एप्लीकेशन इसमें बिल्ड कर सकते हो यूजिंग एसएपी टेक्नोलॉजी एंड एसएपी कोडिंग करेक्ट फ्यूरी, करेक्ट राइट? करेक्ट। या मतलब यार, यू कैन ओनली मॉनिटर, मतलब क्या चल रहा है, कैसा कितना टास्क पेंडिंग है, वो सब मॉनिटर है। आप इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स, यू नीड टू डू इट ऑन डिफरेंट, ऑन योर पर्टिकुलर सिस्टम। लाइक आप एक एप्लीकेशन है ना, उसके लिए एक इंस्टेंस देते हैं लोग, मतलब सर्वर देते हैं, उसके अंदर लॉगिन होके, सिस्टम के अंदर लॉगिन होके आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर उधर टेस्ट सक्सेस आए तो इधर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आके आपको बोलो दिस टास्क इज सक्सेसफुली टेस्टेड इन द सिस्टम एंड इट इज वर्किंग फाइन एज पर यूजर रिक्वायरमेंट एंड दिस ऑल द थिंग्स वी हैव डन, एंड डॉक्यूमेंटेशन डाल के इसके अंदर ये क्लोज कर सकते हैं आप, दिस टास्क इज क्लोज करके, क्योंकि ये आपके अंदर आता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ में आ गया मेरे को कि आप इसके अंदर ट्रैक कर सकते हो। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन आप बोल रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन मींस के पूरी डेवलपमेंट टीम जो काम कर रही है, जैसे वो डेवऑप्स होता है सारा कुछ, वो जो कर रहा है, हाँ वही, वो हाँ इसके करेक्ट अंदर ट्रैक कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट, मतलब एक सेकंड। ओके। और वो जो है वो लोग वो जो टीम है, वो डेवलपमेंट टीम, उनका सारा ट्रैकिंग प्रोग्रेस, ये वो, तो ये रेदर देन यू यूज डेवऑप्स एडीओ, करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू ये विल बी आपको ये यूजिंग सब दिस यूज करने इम्प्लीमेंटेशन। की जरूरत नहीं है। आप ये क्लाउड एलएम के अंदर ही सब मैनेज कर सकते हो। करेक्ट, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? अभी वही दिख रहा है ना, वो वाइट क्लाउड एलएम की स्क्रीन दिख रही है। एक सेकंड, ये जूम पे तो अभी आप, मेरे को लो। समझ में आया तो थोड़ा ओवरव्यू। और ये आप ले लो, और ये मैंने आपको बताया ना कि वो समझ लो उनकी 4,000 एप्लीकेशन है जो उन्होंने बिल्ड करी हुई है, तो कितना हम्म, कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होगा ना, 4,000 एप्लीकेशन, मतलब ये लोग क्लाउड के ऊपर ही जाना पड़ेगा वैसे, अब तो वो क्लाउड ही क्योंकि पर है। हाँ, और मतलब $1 बिलियन दे वही, रहे हैं साल का लाइसेंसिंग का, तो क्या कुछ तो होगा ना। अगर उतना ज्यादा है तो ये लोग फोकस्ड ऑन यूज कर सकते हैं। फिर भी क्लाउड एलएम आप सीख लो, बता दो उनको, उनकी चॉइस है उनकी, लेकिन आपको क्या ऐसी बदलना नहीं है नहीं, मैं बता उस दो। लेवल पे किधर हूँ, वो तो ऑलरेडी उन लोगों ने सारा कर लिया है। मुझे तो सिर्फ ये क्लाउड एलएम का समझ में आ जाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या करना है मुझे, और वो अगर यूजर यूजर मुझे बोलते हैं तो वो कैसे बनाना है। ओके लेकिन ये ओके। इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो, ये वैसे बहुत अच्छी है। एज अ कंसल्ट आप देखना, आप 6 महीने के बाद मुझसे बात करोगे ना, आप बोलोगे यार अब्दुल तुमने तो कमाल कर दिया, मैं बड़ा गुड, एक्सपर्ट हूँ। या दैट विल बी अ गुड थिंग टू हियर। चलो अभी, कौन डिजाइन क्लाउड प्रोजेक्ट्स बट आल्सो सपोर्ट्स हाइब्रिड एंड कैन रन, मतलब ये क्लाउड एलएम अगर आपके सिस्टम ऑन प्रीमाइज में है तो
उसको भी यूज कर सकते हैं, क्लाउड में भी यूज कर सकते हैं। ओके, Yeah. एंड इट्स particularly यूज फॉर मूविंग टू क्लाउड बेस्ड एसएपी एप्लीकेशंस, क्लाउड सेंट्रिक कस्टमर्स के लिए। ये थोड़ा बेसिक है। अभी अभी आपको क्लाउड एलएम और सोल्यूशन मैनेजर का डिफरेंस बता देता हूँ। ये सोल्यूशन मैनेजर ऑन प्रीमाइज का, ये क्लाउड के लिए आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है सोल्यूशन मैनेजर का, very difficult, and this is very easy cloud ALM, and this is for maintenance requirement. Everything should be done by the customer itself. For cloud ALM it can be done by the SAP people. And implementation efforts, agar if you want to integrate one system into cloud solution manager, it takes 1 month. In SAP cloud ALM it will take 20 minutes. So, and To updates do what? require manual. Huh? To 20 minutes to do what? 20 minutes to integrate a system into cloud ALM. Or integrate another Yeah. system. Okay. मतलब क्लाउड एलएम के अंदर आपका सिस्टम आना चाहिए, तो मतलब जो आप एप्लीकेशन है ना आपका एसएपी जी, एप्लीकेशन, जी। and updates and all you should be done manually if it is a solution manager by you. In SAP Cloud ALM everything takes care. And user experience, it is very easy in Cloud ALM dashboard and all. Cost मतलब higher operational cost, मतलब यार 8 GB का आना मेमोरी देते हैं लोग क्लाउड एलएम, सफिशिएंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी कस्टमर। 8 GB है, थोड़ा डीप से देख लो हाउ मच मेमोरी यू विल गेट। मेमोरी मतलब डेटाबेस, आना हम्म। डेटाबेस 8 GB देते हैं आपका एप्लीकेशन ये सब ट्रैक करने के लिए। और लाइसेंसिंग ऑन प्रीमाइस, देखो यूसेज राइट्स इंक्लूडेड विद एसएपी एंटरप्राइज सपोर्ट क्लाउड एडिशंस, मतलब मैंने बोला ना, आई टोल्ड यू नो देयर इज नो नीड टू पे एक्स्ट्रा, वंस यू गेट द एंटरप्राइज क्लाउड Right, सपोर्ट right. you will get it for free. Maintenance, this will end in 2027 and extend until 2030. Current and future solutions, this is the future and current. And now we come to the two types, operations part and implementations part. मैंने बोला ना आपको इधर, ऑपरेशन जी। implementation part, operations part, समझ गया ना? So here we will go here. Operations part मतलब once your application is ready and people are using it, okay, you will monitor the business, how the business process is going, what all business use के lead to cash procurement, ये सब वो सब बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग करके एक टाइल है, वो यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड एक्सेप्शन मॉनिटरिंग करके एक है, दिस इज यूज टू मॉनिटर योर इंटरफेस चैनल्स, एंड दिस इज यूज टू मॉनिटर योर व्हाट इज इट सिस्टम हेल्थ, जॉब एंड ऑटोमेशन मॉनिटरिंग। एक थोड़ा टेक्निकल है, बिजनेस के ऊपर बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगे। ये पूरा ऑपरेशन साइड है, आपको इसके ऊपर अच्छा, एडमिन ये साइड, पूरा साइड है। एडमिनिस्ट्रेशन साइड। अभी आपको नेक्स्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेशन साइड, देयर इज टू टाइप, या दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन टाइप। सो दिस इज वेयर यू प्ले इंपॉर्टेंट रोल सिंस योर नहीं, वो प्रोजेक्ट। मुझे तो अभी वो ये वाला ही दिख रहा है, स्लाइड नंबर 5। ओके, एक सेकंड, यू कैन टेल मी। ये मेरे को लगता है आपके उसमें और मेरे उसमें थोड़ा वो है, डिले है शायद। अभी वो नहीं स्क्रीन डार्क हो गई है, उस पर ट्रेनर नहीं लिखा नहीं, हुआ आ रहा मैंने डार्क अभी दिख रहा है क्या इम्प्लीमेंटेशन का? है। अभी दिख रहा है। ये क्या है ये? वो जो पहले वाली स्क्रीन थी वो ऑपरेशन था सारा। हाँ करेक्ट, वो ऑपरेशन था, ये इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, ओके। दिस यू आस्क नो इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब इधर आता है पूरा। अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना, अभी दिख रहा है। मतलब वो क्लाउड एलएम सब दिख रहा है क्या इम्प्लीमेंटेशन? मुझे हाँ अभी दिख रहा है, क्लाउड एलएम स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट हाँ 3, हाँ हाँ हाँ। और फेजेस सो उसके डिस्कवर, हाँ प्रिपेयर। वही वही इसके ये इम्प्लीमेंटेशन पूरा मतलब दिस इंक्लूड्स व्हाट ऑल आई विल शो यू अभी। ओके, या सो दिस कम्स अंडर योर रोल implementation in the project manager side, whatever you want to do here। आप अभी सोचो प्रोजेक्ट लीड है आपका प्रोजेक्ट का, आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा, आपको टाइमलाइन देना पड़ेगा, आपको स्प्रिंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको माइलस्टोन्स करना पड़ेगा, किक ऑफ कब है, गो लाइव कब है, अब बिजनेस स्कोप सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिजनेस स्कोप मतलब सपोज योर कस्टमर वांट्स टू दे आर इनटू फाइनेंस लाइन ऑफ बिजनेस and you want to focus what all inside finance line of business you need to integrate it,
इन योर माइग्रेशन। आई वांट दिस, लाइक उसमें कुछ कुछ रहते हैं फाइनेंस के अंदर, लीड टू कैश और पे, वो सब कुछ कुछ रहता है मॉड्यूल्स के अंदर, सब मॉड्यूल्स। वो बिजनेस वो बिजनेस यूज करते रहते हैं। उन लोगों को अभी ऑन प्रेमाइज में यूज, दे आर यूजिंग ऑन प्रेमाइज, दे वांट द सेम थिंग ऑन क्लाउड। So they you will do those things along with, in collaboration with the business business people, and you will have one person who is aware of the function module, so he can help you along with the customer based on the requirements what are going to integrate those things. You got it? Mm. And fit to standard workshop, after deciding the scope, again you'll check up with the, you set up a call with the customer, like this all we have finalized, is this what you're looking out, or you want anything to added in this business which you are currently migrating. And based on their opinions, again your requirements will be created for this, task will be created, and requirements will be assigned to those things. Suppose they want additional things, they will give their requirements and they will give approval, and you will take the approval and you will start working on it. Got it? And after that you will create a test preparation, like once the requirements are there, you'll start working on there in the technical side, and once those are ready, you'll start creating test cases in development system, pu quality, sandbox, those things. Once you test those things in sandbox, if everything is working fine, again you will go back to the customer and you will say, you'll set up a workshop, and you'll say all these are working, and you'll do lot of business, you lot of 100 of 200 test cases testing, post everything is worked, then only you'll set up with then you will implement the changes from sandbox. You know sandbox, right? You just need to work around, play around it, do the testing, those things. Once Yeah, yeah. those are, Overall concept I know. I know, but yeah, yeah. I'm not a technical. So. Okay, once sandbox they give okay, everything is fine, then you will move the same thing to the development. To move the same changes to development, you need a transport route that is configured in change and deployment management. Change means whatever change you have made in the sandbox, you want to move that in the cloud, in the quality or development. So you need a TR, transport request, like where you capture all your changes and you will move that into development. Again, once it is moved to development, you will start testing. Post it again, you will set up a call with the customer. You will say everything is working fine in development. Once they give a go around for quality, you will move into quality. And similarly, it will go into production. Once it goes to production, all the test cases will be, then it goes live to the customer, and they will start working on it. And test execution, as I told, after change and deployment, test execution, if anything is failing, those things, they will again create a defect for it and move it. And analytics and reporting is nothing but you will you will monitor all these things, analytics, reporting, what all task is assigned to which team, those team, which person who is working on this task, everything. So all these things come under implementation. It is mainly into the what project management team. This is what mainly you should focus on as your work role. देखो आपको समझ, प्रोजेक्ट सेटअप, मैंने स्कोप, मतलब ये प्रोसेस है कि किसको क्या काम करना है, क्या करना है, आपको ओवरव्यू क्या है, टास्क क्या क्या है, क्वालिटी गेट्स मतलब चेक्स होता है, मतलब सब टास्क जो है ना वो सब किया है, ये टेस्ट किया है, उसके बाद प्रोसेस ऑथरिंग, रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, पूरा आपका पूरा प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर डाल के रख सकते हैं, टेस्ट प्रिपरेशंस, टेस्ट प्लान्स, टेस्ट एग्जीक्यूशंस, डिफेक्ट्स, हाँ, ये ये सब सब तो में। मुझे दिखता नहीं उसके अंदर, तो ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा है ये टाइल्स? क्या मैं वो मुझे अभी एक्सेस नहीं है? आपको एक्सेस नहीं है, आपको एक्सेस नहीं है, और आपको क्यों एक्सेस नहीं है बता देता हूँ। वो आ जाएगा एक्सेस वंस आई टेल देम, हाँ, वो तो मुझे एक्सेस थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको तो इधर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाना है, और इस आपको ये सब ये डालना पड़ेगा, रोल डालना पड़ेगा इधर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, तो डालने के बाद ये आपको मुझे कोई मिलेगा। करके देगा, राइट? या तो एडमिन या कोई भी, आप या भी, कोई। हाँ, क्योंकि दूसरा बंदा करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर। इफ यू या डोंट हैव द यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर। इफ यू आर, ये दूसरा बंदा करके देगा। सपोज इफ यू वांट टू ऐड मोर यूजर्स
in future, like आपको project manager बना दिया, every somebody wants to come and ask, give me access to cloud ALM to the monitoring part, operations part. So then you need to give all these things. For that you should have user administrator role in cloud ALM. Got it? जी If जी you मैं don't समझ have गया। user तो administration role, So this is why when I'm going right now in the cloud LM and I don't see all this, I don't need to panic. Right now I don't have access. yeah, you don't, right now you don't have access, that's it. In implementation you don't have anything, only the below three, right? Nothing I have, Yeah, nothing. so you should have a role for project management. I will explain you what all roles is needed in a couple of minutes. Okay. So till now we are got it. So now let us. These things all are done, but still I will explain you. So you should be knowing how this comes up. You can see my PPT, right? Yeah, I can see the presentation with this Yeah. cloud LM requesting SAP. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Suppose already it is there, but still you should be knowing how it came. Later they should not make a fuss out of it. So now you are planning. So some third person came and everything is okay. Like they are ready to use the SAP Cloud LM BTP. How you will get your Cloud LM? That is how you will request for Cloud LM from SAP. So I will So tell you. in my case, I didn't request, right? When I was onboarded, they, I think, set up everything, and now they gave me this link. It said Calm. I Hmm. click there so I can go there. But the Yeah, problem is when I go there, I don't see my name. It says UU, like it says unidentified user. yeah, got it. That means they have not added your user in identity authentication management. There's a Mm. separate tenant called identity authentication management. They should add your email ID and your name there. Yeah. Then only you will be Then when I log in, I should see my name, right? Abdul Rahman correct. or something. Correct. They might have not given your name. They just have put your email ID. You got mail, right? Mail or they sent you the link to access this. They sent you mail or they directly just No, gave no, you they didn't the. send me a mail because so what they gave us a bunch of documentation for onboarding. जैसे ये आपकी प्रेजेंटेशन है, ऐसा डेक है। उस डेक के अंदर एक स्लाइड है, उस पे लिखा हुआ है काम एक्सेस, सर्विस नाउ एक्सेस, दिस एक्सेस। तो वो काम का जो एक्सेस है, जब मैं उस पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे काम का डैशबोर्ड पे लेके जाता है, जैसे आप मुझे दिखा रहे हो। Hmm. लेकिन मेरे इम्प्लीमेंटेशन पर वो एम्प्टी है, सिर्फ वो एक ही टाइल है उसके ऊपर, और ऊपर कोने पे लिखा होता है यूयू, मतलब अनआइडेंटिफाइड यूजर। हाँ, वही मतलब आइडेंटिफाइड मतलब तो वही यूजर। हु आई नीड टू टेल कि मेरा तो आप पहले तो ये सेटअप तो करो ताकि मुझे ये सब नजर तो आए। You need to tell the project, sorry, administrator, the one who requested for the account, no? Only he will have the access to add you in that identity authentication. The rest of them will not be having. Okay. हम्म। So you need to. I'll explain this first. You will how you will get this. This just takes only 5 minutes, sir. Don't. What is my screen showing you currently? वो स्लाइड रिक्वेस्टिंग एसएपी No, एएलएम yeah. रिक्वेस्ट Okay. परफॉर्म्ड इन एसएपी फॉर मी आइडेंटिफाई। हम्म। अभी ट्राई डिस्कवर रिक्वेस्ट करके कुछ आ रहा है. जी, ये दिख रहा है। Okay. So suppose you want to request a Cloud ILM tenant. First, you will go to request. For this, you need to go to SAP Cloud ILM official page. Just type SAP Cloud. All these are already set up, but you should be knowing the flow. That's why I'm explaining. Okay. Do not. It just takes 5 minutes. Just go there and you will get this page. Okay. Try तो discover request. ये मैं For किसको रिक्वेस्ट भेज? SAP को request कर रहा है. अच्छा, डायरेक्ट एसएपी को। एसएपी को क्योंकि वही लोग सब हैंडल करते हैं ना. एसएपी फॉर मी के मतलब ये एसएपी का ऑफिशियल है. आप इधर आके सिस्टम्स एंड प्रोविजंस के अंदर आना है और इधर प्रोविजंस के अंदर आना है. इधर एसएपी क्लाउड एलएम करके दिखाएगा क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं है उसके लिए. सब सिर्फ हेड ऑफ दी प्रोजेक्ट और वो सब लोग देखेंगे. उसको एडिट क्लाउड डेटा रोल चाहिए एसएपी के अंदर. इफ यू वांट टू सी दिस क्लाउड एलएम यू कैन सी राइट. एसएपी क्लाउड एलएम प्रोविजनिंग के अंदर वो वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना आपको अभी.
जी जी, नहीं वर्ड नहीं, ये दिख रहा है आपका प्रेजेंटेशन, हाँ वर्ड डॉक्यूमेंट ये शायद, हाँ वर्ड डॉक्यूमेंट ये है। एडिट इस क्लाउड डेटा रोल इज हाँ, नीडेड। correct. If you have this role, then in provisioning you can see. I don't have that role, so in provisioning I am not able to see anything. Okay, so आपको ये role रहना चाहिए. Role, if you have this role, then you will get all these systems. You can see SAP Cloud LM, right? And you click on Start Provisioning. Once you start provisioning, it will take 1 hour. Uh, and you need to select all those details, the region where your data center want, it should be there, your company's name, ये सब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. ये सेलेक्ट करने के बाद 30 मिनट्स 1 आवर के अंदर आपका ये प्रोविजनिंग ट्रिगर होगा. 1 आवर के अंदर your system will be ready. Cloud ILM will be ready. You will get a तो mail. इन माय केस तो मुझे अपने मैनेजर को बोलना है ना, वो मुझे तो डायरेक्ट एससीपी को तो नहीं बोलने देंगे, तो आई नीड टू टेल हर कि Yeah, मुझे you need to access- tell your manager. Yeah, yeah. Because it is already created for you. No, there's no need to tell him. I just wanted you to know the workflow. They already have created. That's why you're having the Cloud ALM access and all. ओके, पर हु डू आई टेल कि मेरा तो उस पे नाम आता नहीं है और मेरे पास कुछ कोई टाइल है नहीं सब, तो वो ये तो मैं उसको बताऊंगा बस. मैनेजर हाँ को बोलूंगा बताऊंगा ना। बस, वो बताऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा. इसके बाद वही ये देखो पीपीटी के अंदर है ना. Assign roles users in Cloud LM. This is the first step. Next step, these 3 steps. In this step, what you're speaking will come in next 2 steps. Okay. So you understand how you need to request your SAP Cloud LM from SAP. Once you या request, you will get a link. Log into your SAP Cloud LM application with your username using the link. How once your SAP Cloud LM link is there, in BTP, a global account and sub account called Cloud LM will be created. So you need to log into BTP. For this, you need to again check with the one who requested. The one who requested will have all the administrator role, one person. If he wants to add some other person along with him as an administrator, he can add you also. This no matter how many persons administrator are there, they can, everybody can have this role, but only one person can request it. Post that he will get the administrator role. Post that he can add somebody else as an administrator role. Who administrator means you will have access for entire everything. Okay, currently your manager is having a administrator role. If you also want to have that role, you can tell your manager, tell him I want administrator role for Cloud ALM and SAP BTP sub account. SAP Global sub account, Cloud LM Global account means you will have global administrator role. You entire this Cloud LM, you can do whatever you want. You can create roles, everything, instances, security groups, everything. You can then you will have all the roles to assign user roles, everything. Got it? So tell me the flow. Like suppose if your company tells you to request a Cloud LM talent for us, तो ये what तो will be फर्स्ट यू गो टू दैट साइट यू showed me, SAP then you, format? yeah, SAP for me, and then you send the request to team, and then SAP will set up your account. They will send you an email with the login information, and then you'll be able to log. They will define what roles you have. Depending on the role you're gonna play, those are the permission and access and to the tools will given to you, and then you should have the proper access. And it takes about an hour to for them to do the provisioning. If you starting from scratch, in my case, I believe this is already done. I Yeah, just need these to are tell my already done. manager that what else I need. Yeah, no, no. In your case, it is done. Nothing to do here. In your case, just ask your manager, I want type this role. I want global administrator role for SAP Cloud ILM global account. Ask this to your manager. Once you get it, you can play around in the BTP side. Okay? हाँ, मैं बोलूँगा, मतलब वो तो मुझे देखना पड़ेगा ना, वो मुझे तो पता नहीं क्या देंगे, अभी तो डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स बोल रही है, तो पता नहीं व्हिच रोल। वंस आई रिव्यू विद यू एंड रीड अदर मटेरियल दिस वीकेंड, वो कर दो. नेक्स्ट वीकेंड मैं वो उसको बोलूँगा। वो करो क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, मुझे भी एग्जैक्टली समझ में आएगा क्या करना है करके. हाँ, कल बता फिर मैं दो उसको बस. बोलूँगा ना कि आपको मुझे क्या करवाना है, तो मुझे वो दो एक्सेस, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। करेक्ट करेक्ट. तो देंगे तो वो तो उसने बोला है, तो दे विल गिव इट टू मी। ओके. अभी उसके बाद आपको मेल आएगा, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सर्विस. मतलब दिस इज अ टेनेंट वेयर इट इज मेंटेन्ड फॉर ओनली फॉर यूजर रिलेटेड थिंग्स.
अच्छा, Okay. टेनेंट क्या है? व्हेन यू से टेनेंट, व्हाट डू यू मीन? टेनेंट इज नथिंग बट एन सर्वर. AWS के अंदर एक इंस्टेंस होता है ना सर्वर, ओके, जी जी, where your application is residing on. That is a tenant. So if you can see जी, here, see if you can see your instance ID is a server ID. बराबर, दिख दिख रहा है ना? जी मतलब जी, जैसा होस्ट नेम होता है ना, वैसा इंस्टेंस आईडी है. समझ गया मैं। सर्विस मतलब उसके ऊपर आपको क्लाउड एलएम एपीआई का सर्विस इंस्टॉल्ड है. और भी आप एंटाइटलमेंट सभी ऐड कर सकते हैं. समझ गए ना अभी? जी जी जी, इंस्टेंस is nothing but tenant where your application is residing on. My Cloud LM is residing on this server. All activities related I can do is in this server. Got it? जी जी, Okay. Abhi, so in this flow. So this one is done. Identity authentication service. बता रहा था मैं आपको. Identity authentication service मतलब that is also a tenant where a service related to user management is installed. Got it? हम्म, So whenever you say, you said right now, I am mainly my U is displaying, that is displaying. At that time, they need to add you inside this. Only the project administrator, the one who's having, will go here and add user management. In this, you will add your name, everything, your details, like those things. Looks like they haven't added your name here. They have added only your email ID. That is why it is showing you. You need to tell your administrator that in identity authentication, check whether my user in user management my name is there or not. Okay, write ओके, it down. Write this down. Tell your this. आई एम राइटिंग। Please check whether my name is there in identity authentication service. It's my username or my email ID? Username. I mean, tell them whether my name is visible in identity authentication service. They have ठीक है। filters. They can put you in email ID also. In authentic, what's Identity the authentication service. You can see on my screen, right? got it? Identity authentication service, ठीक है। Okay. इसके ऊपर इसके अंदर मेरा नाम है क्या देखो यूजर मैनेजमेंट के अंदर मेरा नाम मतलब योर नेम. दे might have put only your mail ID. That is why. तो ये मैं वो अपने मेरा जो आर्किटेक्ट है उसको बोलूंगा है कि मेरा The तो उसमें। the one who gave you the Cloud LM link. Check with him. Once your name is added there, then only you can see your name in cloud. You can access the Cloud LM URL. Got it? जी, या आई गॉट इट। All are interconnected. First, you need to be in your identity authentication service. If your name is added here, then you will come to Cloud LM. And here, first, only administrator will have the access. You can see here, right? This is Cloud LM administration. If you can see this one. इधर यूजर मैनेजमेंट करके एक ऐप आता यू कैन सी माय लॉन्च पैड नो. आई सी। या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है ना अभी. ओके हियर यू विल गेट एन एडिशनल दिस थिंग यूजर मैनेजमेंट ओनली द पर्सन विथ यूजर एडमिनिस्ट्रेशन रोल यूजर व्यूअर रोल कैन सी. यूजर एडमिनिस्ट्रेशन रोल मतलब the one who has the requested for cloud LM tenant, no, the first person, he will have the that role. So you need to request him, tell him to add you in implementation. Implementation. See here, implementation operations part. Once he adds you there, then only you will be able to see all the ties related to this implementation operations. समझ गया ना अभी. अभी वो जी रोल्स जी क्या है बता दूंगा. जी, अभी you are not able to see implementation, right, in your tiles. You can see my screen, right? जी जी, Okay, so you should have a project viewer role in user administration. This will be done by your administrator. Since you don't have project viewer, you are not able to see projects, deployment plans, tasks, scopes, process hierarchy, requirements, features, cases, बराबर। defects, and this is why you are not able to see the implementations in all these things. Okay, like how I can see means अभी आपको ये सब नहीं दिख रहा है. ये क्या है? ये सब नहीं दिख रहा है ना अभी आपको. जी
कुछ भी नहीं क्योंकि दिख आप, रहा है। हाँ क्योंकि आपको वो रोल नहीं है, रोल आपको वो लोग असाइन नहीं किए। ये कैसे असाइन करते हैं और कौन करता है? टेल, राइट डाउन दिस रोल्स, लिख ऑल लिया दिस। मैंने। ओके, ऑल दिस प्रोजेक्ट व्यूअर, those things and all is needed। अभी आपको प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोजेक्ट लीड, इस सब अभी। इसमें मुझे कौन सा रोल चाहिए? एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल चाहिए, दूसरा मुझे कौन सा चाहिए वो यूजर के लिए सपोर्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। यूजर काम, एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। लेट मी एक्सप्लेन अच्छा, वो इट। बोल रहे हैं, वो रोल का जो नाम है ना, वो बोल रहे हैं CALM एडमिनिस्ट्रेटर, ये बोल रहे हैं वो, हमें काम का एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। तो वो यही रोल है ना? हाँ वही रोल। और मैंने उसको पूछा था तो उसने मुझे बोला था, आर्किटेक्ट ने, मैंने बोला मैं कैसे करूंगा, तो मुझे तुम्हें सेटअप करना पड़ेगा। बोला हाँ हाँ, मैं आपका सब सेटअप करूंगा। ओके, वही उसको बोल दो बस। ये रोल मैंने अभी बोला, बताया ना आपको। आपका कौन सा रोल है इसके अंदर? मुझे सब रोल है, क्योंकि मैंने पूछ के रखा हूँ, सब रोल दे दिए मुझे, एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ के, क्योंकि हमको यूजर ऐड करना ये नहीं, इधर आते हो। एक बार दिखा देता हूँ डेमो अकाउंट, क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं है। ये आप जो अभी लॉग इन कर रहे हो, ये सैप का, ये उनका कंपनी का सिस्टम है जिसपे आप काम कर रहे हो? ये डेमो सिस्टम है, सब आप भी तो यूज कर ये सकते हैं लिंक इसको। दो ना, मैं डेमो का लिंक आप मुझे भेजो, मैं भी तो ट्राई करूंगा प्रैक्टिस। इधर यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इधर भी लॉक्ड है, यू कैन ट्राई, यू कैन ओनली सी, हम्म। बट यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन सी नो। मैं इस पे मैं अपना बना सकता हूँ अकाउंट एज स्टूडेंट? No, 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 there's no trial account. You can see here, no, this user, you can use this user, this password, and you can log in। बट लिंक किधर है? वो एक मगर वो लिंक किधर है? अभी भेजा ना आपको मैंने। अच्छा, वो लिंक पे क्लिक करूं फिर ये करके तो जाओ? ओके, सो देयर आई कैन प्रैक्टिस। ये किसका है? हाँ, ये सैप का है या आपका है, एसएपी क्या का है? है, एसएपी का है सबको, ये एसएपी पब्लिक डेमो टेनेंट, डेमो टेनेंट है। ओके ओके, और वो लिंक किधर है? आप बोल लो, आपने मुझे भेजा, अभी ओके। जूम के अंदर आपको भेजा हूँ, देखो। हाँ, मैंने देख लिया, थैंक यू थैंक यू। उसके ऊपर क्लिक करो। समझ गया मैं। वो मैं क्लिक करूंगा करो, क्लास के बाद, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। क्लिक करो। इसके अंदर क्लाउड एलएम लॉन्च पैड करके है, ओके। उसके ऊपर क्लिक करो, ये पेज को लेके जाएगा, जो मैं अभी, ये पेज को लेके जाएगा। इधर सपोज आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस करना है, देखो ये सब, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एनीथिंग रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन लाइक प्रोजेक्ट रियल चेंज मैनेजर दोस थिंग्स, then you need to use this user and this password. Only this feature comes for this user. गार Okay, इट गार इट। then if you want to use operations part, you need to use this user, this password only for this सीखने use के case। लिए ये उन्होंने पूरा दिया है बना के। ओके, गुड गुड, सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। You can practice on your own, मतलब you can create, do whatever you तो इसमें want। मुझे दोनों रोल की प्रैक्टिस कर सकता हूँ मैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की भी और वो यूजर एडमिन की सब भी? सबका प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूजर एडमिन का प्रैक्टिस करना है तो आपको इधर जाना है, पावर यूजर ऑल टाइम, किसमें, सॉरी, किसमें जाना? इसमें जाना है आपको। दिस वन, पावर यूजर ऑल इन वन यूजर है, पावर क्रॉस यूजर, कैपेबिलिटी यूजर। क्रॉस कैपेबिलिटी यूजर, ओके। हम्म, सॉरी, होगा तो। यूजर आईडी कॉपी करना है और पासवर्ड पेस्ट करना है बस।
So to use user management, you should have user administration role and user viewer. Write it down. Okay. We should have what? User? User administration. Yeah, वो तो मैंने लिख लिया. तो मैंने दूसरा क्लिक कर दिया. That's a good source. I'm gonna read. Go and try and read. Okay, just like how my screen looks, similarly it looks. You can see user management here, right? You're able to see, right? Yeah. So at least इसको देख के I can compare and I can go and tell my architect that मेरा तो ऐसा नहीं दिखता है, तो you have to set me up. मतलब here you can see create user. You will get an option called create user here. So you can create your username. So if you want to understand it, I will share you. I will show you one video. You will understand it better. I will share you this role, this link also. You can see the demo videos, how it is done. Okay. Okay, that would help. This shows, you can see here. Okay. Let me know you can hear this video or not. Yeah, I see. You can hear the video? Hello? Yeah, little bit, not much, because you remember you are Okay. there's You just a आप ये latency. ये वीडियो देख लो, हाउ टू असाइन यूजर दोस थिंग्स. क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है. मतलब यू नो विल गेट प्रॉब्लम, एन नो आइडिया. प्रॉब्लम. लेकिन ये कि पहले मेरा वो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो मुझे सेट करेंगे तब मैं कर सकता हूँ, राइट? करेक्ट करेक्ट. राइट नाउ मुझे जो दिख नहीं रहा, उसका मतलब ये कि मैं अभी सेटअप ही नहीं हूँ उसके अंदर ना. सेटअप ही नहीं है. उसको बोलो गिव मी यूजर एडमिनिस्ट्रेशन रोल एंड ऐड मी इनटू इम्प्लीमेंटेशन लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट व्यूअर, वो सब रोल्स. ये अभी मैंने आपको एक लिंक भेजा हूँ, उसके अंदर आपको सब दिखेगा, रोल्स सब. ये क्या ठीक क्या है. रोल्स क्या क्या है करके. ओके. देखो बोल रहा हूँ ना, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल. दिस क्रिएट एंड मैनेज यूजर्स, असाइन एंड अप्रूव ऑथराइजेशन. यू कैन सी, राइट? ये ये लिंक भेजा आपने मुझे, ये वाला, इस हाँ. पेज का. इस या ये इस सब यूजर रिलेटेड का लिंक अभी भेजा हूँ मैंने आपको जूम के अंदर. क्लिक करो उसके ऊपर. वो पहला वाला लिंक या दूसरा वाला? सेकेंड वाला. पहला वाला इज फॉर डेमो. ओके. ठीक. इम्प्लीमेंटेशन मतलब you are not able to see the implementation tile. For that you need minimum project viewer role. Other, ठीक there है. are a lot of things also. वो फिर डिसाइड करेंगे ना वो लोग, कि वो मुझे हाँ, क्या वो रोल दे डिसाइड रहे हैं, क्या करेंगे. नहीं. अभी मैंने They will. जो लिंक भेजा हो ना आपको, उसके अंदर रोल्स सब है. ठीक है, भेजा ठीक है. हूँ आपको, देख नहीं, वो लो. अच्छा है, मैं वो रेफरेंस के लिए मुझे समझ में आएगा जब मैं उनसे बात करूंगा. हाँ, वो समझ में आएगा आपको उसके अंदर. अभी आपको समझ में आएगा. रोल के अंदर जाके यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ये सब सब है इसके अंदर. पढ़ लो आप, समझ आ जाएगा. बराबर. अब तक कुछ डाउट है? नहीं, 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 सो फार सो गुड. गुड ना. ओके. मैंने बोला ना, आई एम IT person, so I will pick up very fast. Yeah, this Cloud LM is very easy tool, not so difficult and all. It's a very easy tool. There's no need to understand. This Cloud LM, where is it? CP. Yes,
अच्छा, राइसअप बोलते हैं वो लोग, बहुत यूज करते हैं वर्ड राइसअप। राइस विथ एसएपी। ना, राइस नहीं, राइसअप, फिर WRICEF। राइस है वो आइडिया नहीं है, देखता हूँ एक सेकंड। वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन से ही है रिलेटिव। हाँ, ये सी राइसअप इन सैप, ये वो लोग बहुत यूज करते हैं राइसअप, राइसअप। कोई बात नहीं, आपको नहीं, अब मैं वो कर लूंगा, अब उधर से भी और भी मैं तो और भी पढ़ूंगा ना इसके बारे में। अभी आप जो मुझे बता रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज मोर फोकस ऑन व्हाट दे आस्किंग मी टू डू। या फिर उनका भी डॉक्यूमेंटेशन पूरा मैं देखूंगा। फिर मैं थोड़ा आपको मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ, अगर आपको भी कुछ आगे कुछ क्वेश्चन हो, क्योंकि वो मुझे उन्होंने दिया है ना सारा, वो बहुत ट्रेनिंग उन्होंने मेरे को, पूरा IBM का ट्रेनिंग पैकेज उन्होंने मेरे को दिया है। ओके ओके। आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये सब समझ में आएगा, क्योंकि बट यू डोंट हैव एक्सेस फॉर दिस थिंग्स, यू नो कैन प्रॉब्लम, नो ट्राई। प्रॉब्लम, आप मुझे वॉक थ्रू कर दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ओके तो सपोज। नंबर वन काम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका ये, क्या प्रोजेक्ट सेटअप करोगे तो आप इसमें जाओगे, ये ऐसा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, राइट? करेक्ट करेक्ट प्रोजेक्ट अभी आपको ये है कि यू हैव गॉट वन प्रोजेक्ट एन एस फोर आना माइग्रेशन प्रोजेक्ट। ओके, जी जी। your customer wants to migrate their systems into S4HANA and you want to track that project using Cloud। समझ गए ना सिनारियो? जी, as a role of as a role of PMO is to ये मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड जरा आप दोबारा बोलो, मैं लिख लेता हूँ। क्या रोल क्या है मेरा, मतलब ये हम अभी रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरा रोल है एज अ yeah, प्रोजेक्ट मैनेजर। you are playing as a project manager। अभी ये रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो समझ में ले जाएगा, बट फिर भी हाँ लिख लो। हाँ। assume that you are playing a role of project manager PMO, and your customer wants to migrate their system into S4HANA Cloud। कस्टमर वांट सिस्टम माइग्रेट टू S/4HANA क्लाउड, Cloud. ओके। And as a project manager role, you need to take care of all the things। ये स्क्रीन में देखो, project ओके, setup by project lead, you need to set up the project, you need to give me a second, I had written that, उड़ा देता मैंने। ये सब आपका काम है एज अ प्रोजेक्ट पीएमओ। Focus on business implementation, establish timelines, tracking mechanism, set up a team, responsible structure, validate reporting needs। ये सब आपका काम है एज अ पीएमओ। ये आप मुझे डेक भेज दोगे ना, ये प्रेजेंटेशन? हाँ भेजूंगा, व्हाई नॉट। हाँ सी। ओके, सो सपोज यू आर प्लेइंग एज अ पीएमओ रोल, प्रोजेक्ट लीड मतलब वो टेक्स कर एवरीथिंग। बिजनेस एक्सपर्ट्स मतलब अगर आपकी कस्टमर इसके ऊपर चल रहा है, किसके ऊपर, आना सॉरी, फाइनेंस, मटेरियल मैनेजमेंट, जी या that kind of business, only a functional module consultant can understand it। So you need one functional consultant in your project to understand the business, what they're doing. A lot of there are separate tools for each modules, so you need one functional module guy, one जी। matlab many, and you want one consultant, the one who can take care of cloud ALM consultant, those things and all. And you want a change manager who wants to move the changes, maintain the sprint, those things and all. You want one guy. And administrator like SAP guy who takes on the infrastructure, those things and all. And a release and deployment manager is mainly responsible into, okay, we are releasing these all activities समझ which गया, have मैं been समझ गया, समझ uh, गया, आई गॉट since, yeah, since you are from application background, you will be knowing all these things. All these come under implementation, and the project lead, you're responsible to monitor all these people, and these people create tasks and all, and they will do these things. So your main aim is to maintain these people। I'll ये, share this, not an issue। ये So थैंक यू। timelines, so the project methodology, what strategy you're going to use in your project to migrate, timelines, I will show this in the launchpad also, I'm just explaining timelines, team scope, solution process, everything। um, yeah, so I told you no,
Assume your company is planning to do S/4HANA migration to cloud. This is what they are looking to expect from you, I guess. Okay, so first thing is you need to assess their current environment. Assess their current environment means like they are in on-premise now. What all business process they're running? How is their infrastructure? How many data they're consuming? What is the size of the database? All these things. What all business process they're running on their primary system? All those things you will do this along with them with the customer. Okay, and defining migration goal, and they want to do the S/4HANA migration. So in S/4HANA migration, there are three types. One is greenfield, brownfield. Greenfield means we don't want our any existing data. Build a Yeah, new yeah, I know system. that. Yeah, I know the build a, concept. yeah, yeah. So that things you will decide. Post that, choosing that correct migration, what all data I need, those things and all you'll do it. And based on their all this interaction with this, you will build a detailed plan based on their these things. And once that, you will execute the plan and monitor these things. Different phases you will be aware of this: pre-project, prepare, explore, release, deploy. Okay. Suppose the teams you need for migration. The teams you need is a basis team. These are all the teams common for any project, no matter which project they're going to migrate. All these teams are needed at any cost. Okay. Mm. I'll share you this. I guess you will be knowing all these things, but to understand from scratch, I'm telling you so that you won't miss any point. So this team is responsible for technical aspects for including system setup, transport management, and performance optimization. Suppose they want to migrate their data, those things and all. So this This is I know this information, and then again this is a long term goal. जब अभी मेरा वो लेवल नहीं है ना, in this position I am, ये सब मुझको अभी नहीं पता करना है, क्योंकि आई एम नॉट देयर एज अ कंसल्टेंट टू इम्प्लीमेंट और एनीथिंग। वो तो सब हो गया, मैं तो बहुत छोटी सी पोजीशन है, वो मुझे बोलते डॉक्यूमेंट मैनेज करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करो। तो uh, दिस इज गुड फॉर मी टू लर्न। जब आप मुझे भेजोगे तो लॉन्ग टर्म में मैं आई विल लर्न, एंड देन दिस विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लॉन्ग लर्निंग। मैं आपको correct. पूछूंगा, राइट? Hmm. लेकिन राइट नाउ आई थिंक वी नीड टू गो बैक टू योर डैशबोर्ड एंड शो मी दैट, Okay. गिव मी सम फेमिलियरिटी, बिकॉज मैं उसको मंडे को बोलूंगा कि मुझे सेटअप करो, ये करो, वो करो, क्योंकि ये उनकी प्रायोरिटी है। ये जो उसने मुझे काम दिया है ना कि यू नीड टू रिव्यू द स्टार्ट रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंटेशन, द करंट डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको वो लोग क्या डॉक्यूमेंटेशन भेजा है? मुझे एक दो प्लीज बोल सकते हो क्या? हाँ, मतलब वो क्लाउड एलएम नहीं, के बारे मुझे में। मुझे नहीं भेजा है। वो क्या हम्म, है, उनके पास बहुत सारे जो जो उनके सारे प्रोसेसेस है ना, हम्म, हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस, वो सब पूरा टीम काम कर रहा है। तकरीबन 100 लोग काम कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, टेस्ट मैनेजर तो ये तो वो सब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी ये जो मेरा जो आर्किटेक्ट है, उसका मेन गोल ये है कि वो प्रॉपर फाउंडेशन सेटअप कर रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किधर से कैसे फ्लो होगा, किधर आएगा, कौन सा प्रोसेस कहाँ होगा, कि क्लाउड एएलएम और सिग्नेवियो और लीन आईएक्स और सर्विस नाउ ये सब आपस में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो उसने मुझे ये बोला है कि आप पहले यहाँ से शुरू करो, कि ये समझो आप कि हमारे पास अभी कॉम में क्या है, और ये आप देखना शुरू करो। मैं फ्यूचर में इसको क्या करूँगा वो अभी टू बी है, वो अभी डोंट वरी अबाउट दैट, but try to understand what we have, like what processes we have, what documents we have, where they are residing right now। तो अब वो मैं जब गया उसके अंदर, तो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट का मुझे तो फोल्डर ही नहीं दिख रहा। तो अब आपने मेरे को थोड़ा समझाया है ना, तो अब मैं उसको बोलूंगा ये वाले वीक इसके में। अंदर जाओ, इधर मिलेगा डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो मैं उसको बोलूंगा कि आप मेरे को मेरा लॉगिन तो सही करो, ताकि मेरे को नजर आए, तभी तो मैं जाके ढूंढूंगा। प्रोजेक्ट रिलेटेड टेस्टिंग का अभी स्लाइड पे तो डॉक्यूमेंट मुझे जैसे। नजर आ रहा है, लेकिन हम्म, वो उसमें क्या नाम है, नजर नहीं आ रहा है। मैं काम कर सकता हूँ, मैं आपको ना एक काम कर सकता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। मैं कंपनी का वो जो उन्होंने जो मुझे डायग्राम दिया है ना, वो मैं उसका भेज दो। पिक्चर, हाँ भेज दो, मुझे समझ आ जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली व्हाट दे वांट यू टू डू करके। वो तो मैं आपको वो एग्जैक्टली exactly क्या करना है वो तो मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि मैं आज दोपहर में जरा पढ़ूंगा ना। ओके ओके, तो मैं स्क्रीनशॉट बता दूंगा, बोलो ना, लेकिन अभी कोई मैं इमेज क्या है तो करता भेजो। हूँ,
मैं आपको एक शॉट भेजता हूँ, स्क्रीन शॉट। उससे आपको ये आइडिया होगा कि वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। और वो सैप के अंदर से आपने मुझे दिखाया ना डैशबोर्ड, उसमें डॉक्यूमेंट का फोल्डर, वो मुझे बोल रही है आप वहाँ जाओ और डॉक्यूमेंट में जाके देखो। तो वो तो मैं देख ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं। तो अब मैं उसको कल ये मंडे को जब मीटिंग होगी तो मैं उसको बोलूंगा कि आप मुझे वो सेटअप तो करो, वो मुझे दिखाओ, मैं उसको अपना स्क्रीन दिखाऊंगा कि मेरे पास तो है ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको अपनी स्क्रीन का भी भेजता हूँ ना एक स्क्रीन शॉट, तो आपको आइडिया हाँ होगा कि मेरे को क्या दिखता है। हाँ। एक सेकंड। किरण ये भेजो, उसको स्क्रीन शॉट भेजा मैंने। move to which panels? चिराग ये देखो आप, ये मेरी स्क्रीन हम्म। ऐसी दिखती है। हाँ वही, क्योंकि आपको एक्सेस नहीं है ना, इसलिए देखा वो आपने लोग। स्क्रीन में? हाँ मैंने देखा। देखो इस वो पे वही मुझे वो। ये क्लाउड इंटीग्रेट। ओके, तो एक बात तो सॉल्व हो गई कि ये मैं अभी मैं उसको बोलूंगा नहीं एक दो दिन, क्योंकि अभी जो उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए मैं पहले वो पढ़ूंगा, फिर आप मेरे को समझाओगे। तो होपफुली बाय वेडनेसडे और समथिंग मैं उसको बोलूंगा। बट जब तक मुझे इतना नॉलेज होगा कि मैं उसको बोल सकता हूँ कि मैंने पढ़ा है काफ़ी, लेकिन अब मुझे प्रैक्टिकल देखना है, तो आप मेरे को एक्सेस सेटअप करके दो। ओके, सो द मेन थिंग दे आर लुकिंग इज प्रोसेस अब आप हायरार्की। मुझे वहां से समझाओ वो डैशबोर्ड से कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँ तो फिर मुझे समझ में डैशबोर्ड आए। से ही सिखा रहा हूँ ना। नहीं दिख रहा है क्या मेरा डैशबोर्ड? नहीं ये दिख रहा है मुझे, लेकिन वो आप टाइल वाले पेज पे जाओ, हाँ यहाँ से दिखाओ मेरे को। पहले इम्प्लीमेंटेशन पे जाओ, मैं पहले बता देता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं करके। प्रोसेसेस मस्ट बी मैन्युअली अटैच्ड टू द काम प्रोसेस हायरार्की। देखो इधर आपको आना है, इधर आपको select spreadsheet file process hierarchy notes. Once the file has been uploaded, it require use the template. मतलब काम प्रोसेस हायरार्की मतलब आप एक बिजनेस प्रोसेस बना रहे हो, उसके अंदर क्या क्या वो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं। प्रोसेस हायरार्की मतलब बिजनेस प्रोसेस, इसको आप इधर आके अटैच करना है। उनकी यही डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि इसी तरह आप लोग वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये एक चीज वो लोग इधर चेक कर रहे हैं, प्रोसेस हायरार्की और प्रोसेस व्हेन कंप्लीट फ्लो इनटू क्लाउड एलएम वेयर दे आर प्लेस्ड इनटू काम स्कोप। ओके ओके, तो लेट मी राइट इट डाउन। तो आप यहीं पे रुक जाओ, अभी रुक जाओ रुक जाओ। तो मेरे को पहला टू मैं लेट मी राइट डाउन टू अंडरस्टैंड प्रोसेस हायरार्की, गो टू implementation, then process hierarchy, and then I can see what they have. So this is the one thing, right? Because I don't have tile, I can go. So मैं उसको बोलूँगा मेरे को आप वो एक्सेस दो ताकि मैं फिर जाऊँ और प्रोसेस हायरार्की में देखूँ। तो यहाँ पर मुझे प्रोसेस हायरार्की करंट क्या है वो देखने को मिलेगी। और वो डॉक्यूमेंट किधर है? कौन सा वो इसके अंदर जाओ, प्रोसेस हायरार्की के अंदर आपको नया क्रिएट करना है तो क्रिएट करो। नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये तो समझ गया मैं। ये वो पीछे जाओ आप, स्क्रॉल डॉक्यूमेंट्स के करो नीचे, नीचे। मतलब ओके ये उनको बोलो ओके, गिव मी तो इसी में मेरे गिव को मी चाहिए रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट में मुझे उनको ये। तो ये ऐसा एक्सेस लेने के लिए जिसपे मुझे को ये ऐसा दिखाए आपके जैसा, तो मैं उनको क्या बोलूँ, ये किसके अंडर आता है? प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके। प्रोजेक्ट लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों रोल्स आपको चाहिए। मैं ये मुझे आना चाहिए, राइट? तो हाँ, ठीक है, मैं उसको बोलो उससे गिव मी प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट रोल, तो प्रोजेक्ट लीड। प्रोजेक्ट मैनेजर और वो यूजर एडमिन, वो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन रोल। नहीं, प्रोजेक्ट लीड। प्रोजेक्ट लीड, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर यूजर, इट हैज नथिंग टू डू विथ अदर इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल। हाँ
तो मेरे को मतलब अगर यूजर क्रिएट करने और यूजर मेंटेन करने तो उसके लिए मुझे कौन सा चाहिए? यूजर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर और और यूजर इम्प्लीमेंटेशन। एडमिन का रोल का वो आप मुझे सेट करके दो। ओके ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। फिर मुझे ये टाइल्स दिखेंगे। हाँ, तभी आपको फिर मैं दिखेगी। जाके देखूंगा कि वो करंट क्या है, जो वो बोल रही है कि अंडरस्टैंड करंट हायरार्की। तो अंडर वो समझने के लिए मेरे को ये एक्सेस चाहिए, तो मैं जाके देखूंगा। ठीक है, करेक्ट। अभी ये इधर क्लियर हो गया। देखो, प्रोसेस मैनेजमेंट देखने के लिए आपको प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, क्योंकि क्रिएट, एडिट, प्रोसेस ऑथर के लिए प्रोसेस मैनेज, ये सब रोल्स आपको प्रोसेस मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। प्रोसेस हायरार्की, ऑथर ऑथर चाहिए ना, प्रोसेस हायरार्की ऑथर रोल्स चाहिए। बराबर बराबर, समझ गया। ये लिंक आप पढ़ लो। नहीं नहीं, ये मेरे को समझ आ गया, वो लिंक लिंक भी डाल दो। लेकिन ये जो आपने मेरे को समझाया, मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि दिस इज वाज माय प्रॉब्लम। मैंने बोला यार ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो अब वो मुझे उनको बोलना पड़ेगा कि यार आप मुझे वो दो। आपको सिर्फ ये बोलना है, फर्स्ट ऐड मी इनटू आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सर्विस, पोस्ट दैट, गिव मी, लिख लो, गिव मी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल इन हाँ, क्लाउड लिख लिया एलएम, मैंने। मैं उनको बोलूंगा हैंड गिव मी यूजर एडमिन एंड प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल का प्रोजेक्ट आप मुझे मैनेजर, प्रोफाइल दो। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीड। बस प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीड, मतलब सब मिल जाएगा उसके अंदर। अच्छा, और अगर वो मुझे कुछ ट्रेन करना पड़े यूजर को, तो उसके लिए कौन सी प्रोफाइल चाहिए? मतलब चेंज करना पड़ेगा, मतलब यूजर को चेंज चेंज। नहीं, ट्रेन। अगर मुझे वो कुछ ट्रेन करना पड़े तो? हाँ, अगर वो मुझे बोलते हैं ये ट्रेन करो इसको, किसी को कुछ सिखाना है, अभी नहीं, महीने दो उस, महीने बाद बोलेंगे, तो वो ट्रेनर की उसको, भी प्रोफाइल है क्या? नहीं नहीं, ट्रेनर प्रोफाइल नहीं। अच्छा आप वो, यूज करते ही, ये एक्सेस मिलते ही आप उसको सिखा सकते हैं ना, अंदर जाके जाके। ठीक है ठीक है। और वो फंक्शनल कंसल्टेंट का अगर वो मुझे बोलते हैं करने के लिए, तो उसके लिए मुझे कौन सा वो चाहिए? यही यूजर एडमिन का रोल वो चाहिए? नहीं नहीं, वो बताऊंगा, फंक्शनल अगर मुझे वो कंसल्टेंट। कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े, वो तो मुझे लगता नहीं कि वो मुझे अभी टच करने देंगे, लेकिन इन केस। फंक्शनल एडमिन टीम्स के अंदर आना पड़ेगा इधर। देखो, इफ यू कैन सी आई हैव प्रोजेक्ट लीड रोल, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सी ऑल दिस, सो यू शुड आल्सो गेट दैट। आपको क्या अभी ये टीम्स, फंक्शनल टीम को आपको क्रिएट करना है, तो मैं बताऊंगा उसको सिर्फ उसको भी प्रोजेक्ट मेंबर रोल चाहिए इधर। अगर वो बंदा हो तो आपको फंक्शनल वो सब कुछ करना है, अपडेट करना है इधर, मतलब उसको प्रोजेक्ट मेंबर, लिख लिया मैंने। मतलब ये लिंक के ऊपर जाओ, आपको कौन सा रोल क्या करेगा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ये पढ़ लो बस, बाकी ठीक कुछ। है। देखो, प्रोजेक्ट लीड, मतलब प्रोजेक्ट लीड रोल चाहिए आपको, मैनेज प्रोजेक्ट, डिप्लॉय प्लान्स, फीचर। प्रोजेक्ट लीड मतलब सब पूरा एंड टू जेड, प्रोसेस हायरार्की भी उसके अंदर मिल जाएगा। प्रोसेस हायरार्की व्यू मिलेगा, बस एडिट नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेज समझ गया मैं। डॉक्यूमेंट्स, ये आई सब गॉट इट। रोल्स। ओके, पोस्ट दैट ओनली विल बी एबल टू सी दैट। ठीक है। वो मुझे लगता है उसको भी नहीं पता, आई डोंट थिंक दे हैव आइडिया कि मेरे पास क्या एक्सेस है, क्योंकि मैंने स्क्रीन तो शेयर किया नहीं है ना। हाँ, ये वो तो बोलो। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने लिख लिया, फिर मैंने वो वीडियोस देखे, फिर मैं गया, जब मैंने लॉग इन किया तो मेरे को ये डैशबोर्ड दिखा। मैंने बोला ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने इधर वही उधर क्लिक करा। फिर मैंने अभी उसको बोला नहीं है, तो अभी उसने मुझे ये बोला है ये पढ़ो, वो जो उसने मुझे आईबीएम का सारा दिया है ना। वही, ये रोल मेन रोल है। ये रोल आने के बाद आपको दिख जाएगा, उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उनको मुझे ये रोल देने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट मेंबर, यूजर एडमिन, तभी मुझे सब हम्म, दिखेगा। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। अभी आपको मैं, अब तक कुछ डाउट है तो पूछ लो, सब कुछ समझ आ रहा है ना? कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ रहा है। ओके। तो ये मैं कह रहा था ना, ये जो मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ये यूट्यूब पे नहीं कर सकते ना, वो तो दे नहीं आप नहीं, बैठ के देखते रहो बस। उनको उधर ये सब बोलते ही नहीं ना, गो टू इम्प्लीमेंटेशन टैब, गो टू आप। ये आपको एक दिख ही ही नहीं जो है रहता, ना, आप आप कहाँ जाओगे? अच्छा, आप अगर साइन अप लॉग इन करोगे और प्रोसेस हायरार्की में जाओगे, तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस हायरार्की नजर नहीं आ रही है? आपको क्यों नजर नहीं आ रही? क्यों, आप क्या डेमो में हो क्या? नहीं नहीं, मेरा इधर कोई क्रिएट नहीं किए ये लोग। हाँ ओके, ये मैं बोल रहा हूँ। वी आर स्टिल इन माइग्रेशन, वी आर स्टिल इन सैंडबॉक्स।
And we are using DevOps, Sure DevOps to track our tasks. ये सब नहीं हाँ, यूज वो कर। ये भी यही कर रहे हैं ना, वो सारा टेस्टिंग डेवऑप में जाएगा। हम्म। मुझे उन्होंने अभी। डॉक्यूमेंट दिया है अभी कल, वो मेरे को मंडे को सबमिट करना है, वो मंडे की शाम तक। वो उसको बोलते हैं TRO, टर्म्स रेफरेंस कोई डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा वो BRD होता है ना, ऐसे प्रोजेक्ट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट। हम्म। तो वो मुझे भर के तो करना है, तो वो मैं भरूंगा ना, तो मुझे फिर वो ADO का पूरा स्कोप समझ में आ जाएगा। बट दैट्स व्हाट दे यूजिंग, दे गोइंग टू यूज DevOps फॉर टेस्टिंग, एंड दे यूजिंग काम राइट नाउ, बट इन अ फ्यूचर वो टेस्टिंग भी DevOps के इसके काम के अंदर ही लेकर आएंगे, और सर्विस नाउ ये DevOps ये सबको रिटायर कर देंगे। मतलब अभी आपको प्रोसेस ओके, हायरार्की के मुझे बारे समझ में। में आ गया। अभी आप आ जाओ वो प्रोजेक्ट मैनेजर वाले रोल पर के, वो डैशबोर्ड से वो सेटअप प्रोजेक्ट, वो मुझे आप छोटा सा एग्जांपल देके हाँ, एंड दे टू एंड। दूंगा दे दूंगा। Suppose your project is ready now. You want to, I mean, they have decided to go live for your project. Okay. You will come and create a new project. You will go to, I'll tell you from starting. Implementation में आओगे, आपका सब प्रोजेक्ट सब डिस्कशन कस्टमर के साथ सब हुआ है। उसके बाद अभी इधर आके आप आपका प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट का नाम क्या है करके। So let us go here. तो मैं दोबारा, अच्छा रोल ये हो गया, अब इधर से अब तो पहला पीस इम्प्लीमेंटेशन में मैं गया, अभी ये फाइनलाइज। वीडियो है ना, वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट सेटअप में गया। अब मैं ये प्रोजेक्ट सेट कर रहा हूँ, जैसे न्यू प्रोजेक्ट, ओके आई गॉट इट। करेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो आप डिसाइड कर लो। समझ गया, आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को पता है, आई एम डूइंग इट फॉर 30 years। ओके, तो देन आई वांट इसमें जाके क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट मैं प्रोजेक्ट। सेटअप करूंगा। बता दो कोई न्यू, ये प्रोजेक्ट नाम दे दोगे। और इधर आप आओगे, एक्टिवेट रोड मैप। क्या होता है समझ गया, मैं एक्टिवेट? वो स्नैप एक्टिवेट की जो मेथोडोलॉजी उसका फ्रेमवर्क है वो। करेक्ट करेक्ट, मतलब यू वांट टू डू इस फॉर एन इम्प्लीमेंटेशन, अपग्रेड इम्प्लीमेंटेशन, रोड मैप्स, बिजनेस नेटवर्क, ईआरपी अडॉप्शन प्लान, ये सब रहता है। सपोज यू वांट टू डू सक्सेस फैक्टर इम्प्लीमेंटेशन, ये सिलेक्ट कर लो। 3 टायर लैंडस्केप इम्प्लीमेंटेशन, ये सिलेक्ट कर लो। ये तो दिस इज ये लाइक जो मैं सेलेक्ट करूंगा, ये जो ऑप्शन, उसके बेस पे वो प्रोजेक्ट रोड मैप क्रिएट करेगा, ये करेक्ट करेगा वो। करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओह आई सी, ओके आई गॉट इट। इट गिव्स यू अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट। ये आपका आपका टास्क ये रहेगा, इतना इतना काम आपको करना तो पड़ेगा। आप ये जरा सैप है ना डिफर करो ना, सिलेक्ट, देखूं मैं क्या ये बिल्ड करता है। क्या क्या सिलेक्ट करना है? ये लास्ट वाला, नीचे वाला सैप फॉर है ना। ओके। ओके, तो आपने ये कर लिया, और फिर आप ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन डाल के जब आगे जाओगे, देन इट इज गोइंग टू बिल्ड यू अ प्री सेट टेम्पलेट। करेक्ट, वो इधर दिखाएगा आपको क्या क्या मतलब ये मैंने सेव कर देता हूँ। यही किया था ना अभी हम। हाँ, सैप फॉर है ना। तो ये हमने, अच्छा ये मैं कर सकता हूँ वो डेमो में जाके, डेमो जो आपने मेरे को हाँ, दिया उसमें। कर सकते हो। गुड गुड गुड। अब इसके इसने अंदर। एक्टिवेट के लेके मेथोडोलॉजी और फ्रेमवर्क बिल्ड करके दे दिया मुझे। करेक्ट, उसके अंदर ये सब समझ ये आ थोड़ा जाएगा। सीखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने कभी इस पे किया नहीं है ना, मैंने आई आई ऑलवेज वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या स्मार्ट शीट। बेस्ड ऑन या दैट रोड मैप टास्क क्रिएट हो जाता है, देखो। प्री डिफाइंड, अब इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ और रिमूव कर सकता हूँ। ऐड कर सकते हो, आपको खुद का यूजर स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। ये मेरा रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। तो बस ये मुझे समझना है, इसके लिए मुझे उनको सबसे पहले मुझे उनको एक्सेस देना पड़ेगा, या तो मैं डेमो में जाके 2-3 दफा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ है। हम्म। ओके 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 आई इसके गॉट अंदर आके आपका यूजर स्टोरी क्या है सब डाल राइट। सकते हो। और जब ये एक दफा बिल्ड हो गया, तो फिर मैं ये एज अ यहाँ से मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू कैन प्रोजेक्ट ट्रैक टीम को एवरीथिंग। लीड करूंगा, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का प्लान यूज करेक्ट करके करेक्ट टीम करेक्ट लीड करता हूँ। करेक्ट, या। गॉट इट गॉट इट। तो ये गैंट चार्ट का व्यू किधर दिखेगा मुझे इसके अंदर? इधर जाएगा, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। नहीं तो नीचे आओ। नहीं तो आपको इधर दिखेगा। इधर आपको नहीं दिखेगा तो एसएपी पे जाओ, इम्प्लीमेंटेशन में ही जाओ। दिस कम्स अंडर एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट प्रोसेस रिपोर्टिंग। तो ये तो रिपोर्ट हो गया, लेकिन वो गैंट चार्ट में, गैंट चार्ट से मींस लाइक वेयर यू कैन सी द टास्क एंड टाइमलाइन, वो किधर दिखेगा, ताकि जिधर मैं जाके काम करूंगा ना।
जिधर मैं टास्क ऐड करूँ, टास्क डिलीट करूँ, फिर वो मुझे बोले, मैं वो टाइमलाइन डिफाइन करूँ। इधर है तो ना प्रोजेक्ट टास्क पे। अच्छा ऐसे है इसका, बिल्कुल डिफरेंट है ये। थोड़ा स्क्रॉल नीचे करना, तो मेरे को समझना पड़ेगा। इट्स अ न्यू स्क्रीन फॉर मी। मैं आपने बता यूज दूंगा। किया है ना वो क्या नाम है, प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज किया है आपने, या नहीं स्मार्ट शीट नहीं, या? मैं नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए इजी होता है। आपको आता है तो कर दो, नहीं आता तो कोई अरे मसला नहीं है। आता है मुझे, जितना जितना आता आपने मुझे मेरे आता को बता दिया उसको लेके मुझे काफी सेंस हो गया। मैं, आप मेरे पास एक्सेस आ जाएगा ना, ये मैं डेमो में जाके क्रिएट करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि 20 साल से मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही कर रहा हूँ, बहुत सारे हाँ। टूल्स यूज करके ना। ओके देखो, अभी ये टाइम बॉक्स मतलब डिस्कवर फेस, प्रिपेयर, ओके, एक्सप्लोर, रियलाइज, ये क्या होता ये है? पेजेस आ गए। ये क्या है, तो ये 1328, ये क्या है, ये ऊपर जाना? अरे मैंने डेट डाला हूँ बस। नहीं नहीं, ये राइट साइड पे जो बॉक्स बने हुए हैं, ये क्या है? जैसे डिस्कवर 14, प्रिपेयर 93, ये क्या है? वो उसके मतलब हम लोग ये टास्क क्रिएट किए ना, ओके ओके इसके ओके, अंदर वो कितनी टास्क व्हाट है आर आप कुछ पेज में? व्हाट आर स्टेप्स कम अंडर डिस्कवर फेस। ओके ओके ओके। बता देता हूँ। उसके डिस्कवर के ऊपर कर दे, देखो डिस्कवर मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैंने बताया ना, एक्सप्लोर, बीटीपी, ये सब आपको आना चाहिए। मेक श्योर योर एक्सेक्शन सूट, मेक योर बहुत सेल्फ। बहुत डिफरेंट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जो दिखता है उससे उधर ये ये सब थोड़ा। नहीं है ना, एक्टिवेट मेथोडोलॉजी सब नहीं है उसके अंदर। हम्म। डिफाइंड एनालिटिक्स आर्किटेक्चर। ओके ओके ओके, नहीं नहीं, आई गॉट, थैंक यू, दिस इज वेरी हेल्पफुल। जस्ट नीड टू गो बेस्ड ऑन द टास्क, इट विल ओनली पिक अप एवरीथिंग। प्रिपेयर फेज के अंदर क्या आता है, व्हेन इट्स कम टू डिप्लॉय, so many tasks, prepare. By default, it will take all those things. You can come here in the deploy phase, define timelines, those things. You can select only the ones you want and you can do it. Rest of the things you can delete it. Or you can just told not relevant. You can come and put it not relevant for the things. If you want assign team members, this is needed for you. बट कैन आई ऑल्सो ऐड, या यू कैन, आई कैन क्रिएट, राइट? आई कैन ऐड माई ओन टास्क टू, राइट? You can add one project बिकॉज task. व्हेन आई रन अ बिग प्रोग्राम्स, ये जैसे ये प्रोग्राम है, हंड्रेड्स ऑफ टास्क होंगे Select, उसमें, तो yeah, yeah. You can add in the prepare you want. You can add whatever you want. द Here टास्क, ओके। comes subtask, those things, project task. You can add, not an issue. Additional दिस इज हाउ information. आई, अच्छा उसमें तो बहुत इजी है ना, जो रोज है ना उसके अंदर हाँ माइक्रोसॉफ्ट हाँ। प्रोजेक्ट, यू कैन जस्ट इधर गो सब एंड बहुत ऐड। इजी है, इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, इजी है करके आपको। टेंशन बस वेंशन आप नहीं है एक मुझे। दो बार यूज कर दे तो समझ आ जाएगा, उतना भी मुश्किल चीज नहीं। आपको प्रोसेस हायरार्की वो मैं देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कल। ओके। नो प्रॉब्लम, अभी और आपको मैं समझ गया। समझ गया आज मैं। प्रोजेक्ट सेटअप सब बता के रख देता हूँ क्योंकि वो सब वो आप जरा एक दफा वो पीछे जाना, जिधर वो आपका वो था फेजेस जो देते वो, मैं जरा देखूँ कि को क्या फेजेस दे रहा है वो टाइम बॉक्स पे गए थे आप? ओके ओके, टाइम बॉक्स पे जाएंगे तो फेजेस दिखाएगा। इफ अच्छा, यू ये जब वांट यू स्कोप जाएंगे तो प्रोजेक्ट का स्कोप दिखाएगा ना? मतलब वही मैंने ये बोल रहा था टास्क ना, का स्कोप फाइनेंस। दिखाएगा। फाइनेंस आपको मैनेज स्कोप के अंदर मैं आपको इसको ठीक से बताना पड़ेगा। मतलब अभी आपके प्रोजेक्ट है, समझ लो प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। मतलब ये आप कस्टम, प्रोजेक्ट स्कोप है ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ प्रोजेक्ट स्कोप उन लोग ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया। तो आप यहाँ लाइन पे ऑफ। डिफाइन करोगे प्रोजेक्ट का स्कोप। मतलब भाई बोलो, सोच लो आपको मटेरियल तो मैनेजमेंट। समझ गया, आई गॉट इट। यहाँ पर आप लिखोगे, फिर ये पूरा आप उसमें डिस्क्रिप्शन में डालोगे। ओके ओके, आई गॉट। गो बैक टू वो जो लास्ट स्क्रीन पे आप जाना जरा, मैं वो देखूँ क्या क्या है उसके ऊपर। नहीं नहीं, ये सिर्फ गो क्रिएट करके नहीं रखोगे बस, आप सोल्यूशन सिनारियोस भी सेलेक्ट करोगे। सोल्यूशन सिनारियोस मतलब न्यू स्कोप, फाइनेंस स्कोप सेलेक्ट कर दिया, फाइनेंस स्कोप के अंदर भी कुछ कुछ चीजें रहते हैं ना, हाँ हाँ, वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं आप इधर। लीड टू कैश, मास्टर डेटा मैनेजमेंट, got it। दिस इज लाइक बिजनेस प्रोसेस, फाइनेंस इज अ बिजनेस प्रोसेस, उसके अंदर क्या हाँ, क्या समझ प्रोसेस होते हैं समझ गया। वो सब इधर दिखाएगा। अगर आप ये बाय डिफॉल्ट वाला नहीं चाहिए तो यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम वन, दैट नहीं, आल्सो so ऑप्शन है। once you select this business process, let's say lead to cash या plan to fulfill, then it will add those tasks in the plan based on that करेक्ट, business process। ये करेक्ट। तो आपको स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, आई गॉट इट। स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है।
हाँ वाकई Yeah. बहुत इजी है। जो हम मैं हम्म, तो ट्रेडिशनल से आया हूँ ना, एक एक लाइन खुद लिखनी ये- पड़ती है। हाँ देखो, इसके अंदर जाओ, फाइनेंस के अंदर दिस प्रोसेस इज वेरी स्कोपिंग, फैस्ट। प्रोसेस स्कोपिंग के अंदर You जाओ. just go and then you just adjust it because it Yeah, gives you see, your there are complete answer. these all are related to the one finance one. हाँ So whatever you want, you can select. See, activity price type, ये वो सब आएगा. हाँ। Whichever you want, अच्छा you whichever the know business this tells, is you can select this and put it comes in scope. to this comes to very now is coming together because when I was reviewing all this and I was trying to put my own training deck, Yeah, that's what I was putting, that SAP is a tool, but you need to understand the business process. So this is, now I get it. When you use the SAP COM, you can define what exactly you're going to do, your vision, then your scope, then what business process you want to do it for, and then it will build the predefined template, project template, and then you can review and finalize and adjust. I think I got correct. it. I Yes, understand. exactly. Based on the finalization, your teams will start समझ गया working समझ on it. You गया will बस start assigning work. समझ They will गया। अब start ये work. इसको लेके ना, बिलीव मी, मेरे को पूरा समझ में आ गया है ई टू ई। मैंने आपको बोला था ना मैं बहुत स्मार्ट हूँ, खाली मेरे को गाइडेंस थोड़ी सी चाहिए। हाँ, वो ये बस बहुत इजी चीज है, मुश्किल का चीज नहीं है. बस अब मैं आपको बस. आपको अपना बना के दिखाऊंगा ना, अगर हमारी कनेक्शन रहा फ्यूचर में, हाँ. देन यू विल बी सरप्राइज। जो मैं अपना डेक बिल्ड करूंगा ना, देन फॉर See माय the, ओन स्टडी मैं yeah, आपको yeah. शेयर। The one they have given for you is process hierarchy. हाँ ये This तो is मैं समझ गया, ये तो अभी क्लियर creating आई। your own business hierarchy. क्या process hierarchy क्या करना चाहिए, हाँ ये वो तो सब मैं में. अभी, जब मैं उनके डैशबोर्ड में जाऊंगा ना और हम्म. प्रोसेस हायरार्कीज देखूंगा, तब मुझे समझ में आएगा कि उनका कितना कॉम्प्लिकेटेड है। फिर मैं शेयर करूंगा आपको, ये आपको डायग्राम जैसे मैंने भेजा है ऐसे। हम्म. आपका तो ये तो आपका तो है ही नहीं ना यहाँ पर, उनके पास तो 10,000 प्रोसेसेस घुसे हुए उसके अंदर। करेक्ट, उसको स्कोप के अंदर डालना है, उसके ऊपर आप बिजनेस प्रोजेक्ट रेडी करना है, ये आपका काम है. ओके ओके। तो वो जो हायरार्की है यहाँ पर, वो उन्होंने जो प्रोसेस डाले हुए हैं, जब मैं वो हम्म. प्रोसेस सिंक करूंगा प्रोजेक्ट के साथ, तो देन दैट इट विल बिल्ड द प्रोजेक्ट। ओके करेक्ट, करेक्ट. I hope you're getting these tools, no? Understanding. आपको अंडरस्टैंड। प्रोसेस ऑथरिंग मतलब you can create your own. This is what they're telling. New solution process, material management. मतलब you can create whichever the documents you said. No, I have some documents. They might have given all these things. You can create one. You can reference those things, assign those things and all. आपको खुद का सोल्यूशन प्रोसेस बना सकते हो, बोल रहा था ना मैंने. इफ यू डोंट वांट दोस थिंग्स, यू कैन क्रिएट. इट विल शो डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. ये मैं आपको कल बताऊंगा डिटेल से. ठीक। आप रिक्वायरमेंट भेज दो मुझे, उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूंगा. अभी मैं सिर्फ आज प्रोजेक्ट सेटअप तक रख के बता देता हूँ. समझ ही आ गया आपको. वो तो मुझे उसके आ गया। ऊपर टाइम बॉक्स टीम्स बनाते हो, मैंने बोला ना. पीएमओ टीम बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है. ओके. हम्म। If you want, let me edit. You want some roles, you can add roles also. If you don't want these roles, you can remove these roles. All these roles. If you want to create role, come नहीं here. नहीं, ये तो सब मुझे पता है। जरा आप मुझे वो पीछे जाओ, जरा मुझे वो दिखाओ आप, वो डिप्लॉयमेंट क्या है वो, Sorry. डिप्लॉयमेंट लैंडस्केप ये क्या है? Okay, okay. Deployment landscape है ना. व्हाट इज डिप्लॉयमेंट लैंडस्केप? मेरी ना उन्होंने एक्सेस नहीं दिया हुआ, वरना तो बिटवीन यू एंड मी आई थिंक एक दिन की ट्रेनिंग है ये। अगर 8 8 घंटे हाँ, बैठ जाऊँ ना, 4 आवर और 1 घंटे का ब्रेक, आई थिंक वी आई कैन नॉक इट आउट। एग्जैक्टली. ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो बस यूजेज है, जैसे आप नया टूल सीख रहे हो जैसे। डिप्लॉयमेंट लैंडस्केप ये क्या है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। चलो, आई हैव टू नाउ नाउ एटलीस्ट आई नो व्हाट टू स्टडी। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ दिख रहा है मुझे। ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया. ओके. Deployment landscape matlab landscape, you will have set up landscape, no, as I said. POC, development, quality, production. First you will do all those things in quality.
Oh, like phases in a like a Correct. network diagram The के sense में. deployment, where you are going to do the changes, your changes, deploying, like testing, deploying all the testing case use cases. First, you will do it in deployment, development, then quality. This is the deployment landscape where you're gonna तो आप implement अगर it. डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करोगे, ये जो आपने लिखा है 0.10, ये क्या कहीं लेके जाएगा क्या आपको? ये दिस नॉट. Yeah, that is those are system names. You should first integrate your system into Cloud ALM. Then only these things will be visible. That comes under operations part. To edit, लर्निंग कर्व तो है ये. assign system. You can assign whichever system you want. For that, you should first integrate these systems in. Since I have selected all the systems already, it is not showing. If I disconnect, it will show the systems. Okay. For this हम्म. first, ये आपका लाइव है जो आप दिखा रहे हो डैशबोर्ड, जो आपकी जॉब पर आपके पास है, वो है ये. correct, 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 correct. ओके ओके. तो This, दे गेव यू एक्सेस टू, तो आपका एक्सेस जो है वो एज अ कंसल्टेंट है. hmm. But to व्हाट इज योर. explore, but to explore these things, I had taken access to from them. They are given. या बिकॉज यू आर कंसल्टेंट, तो बेसिकली आप सेट करके दे रहे हो उनको ये सारा कुछ. सेट करके दे रहा हूँ ये सारा. ये लोग मगर मैनेज आप कर इसमें देते. प्रोजेक्ट मैनेज नहीं करोगे. जब ये रेडी हो जाएगा देन दे विल हैव देयर ओन टीम. तो ये कब तक आपका ये फिनिश हो जाएगा, ये सेटअप आपका? मेरा सेटअप एक दिन में हो जाता है. मतलब बहुत सारे सिस्टम रहता है ना. सेट हम्म. करके इसके अंदर सब डाल देता हूँ. वो लोग बाद में उनका ये एक्टिविटी टेस्टिंग वो सब करते हैं. वो अलग अलग ये सब तो मैं अभी मैनेज. आपने जो मेरा जो लॉन्ग टर्म है उसमें आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि एज अ कंसल्टेंट क्या रोल है हमारा, क्या करते हैं हम. बता देता हूँ. वो एज अ कंसल्टेंट, first you will go to administration. This is a landscape management. Landscape management matlab all the system which you integrate into cloud ALM will be present here. All the systems matlab applications, ANA systems which you migrate into cloud. Suppose three systems you will migrate. Three systems means one system is related to finance, one system is related into material management, one system is related into some procurement, HR, those things, social. You will integrate those systems into Cloud LM. This is landscape management. Landscape management means all the systems which you integrate into Cloud LM will be present in. You can see clients, customer ID, instances, database, everything, all the technical. You can see all the what all install is there on the system. Supply chain management. This system is related to supply chain management. Okay. Hello. तो Hello. या मैंने समझ गया. आई एम लिसनिंग टू यू. Hmm. These things all is for an insurance, insurance management, all these तो things. Different बेसिकली different एज systems. कंसल्टेंट यू अंडरस्टैंड उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आप Hmm. उनके अंदर वो सारे सिस्टम इंटीग्रेट कर रहे हो. मतलब बेसिस टीम पूरा मैं अलग नहीं काम करता हूँ. उनका रिक्वायरमेंट के ऊपर वो जो टीम क्या क्या इंस्टॉल करना है सिस्टम वो करते हैं. मैं उसको इसके अंदर डाल देता हूँ क्लाउड एलएम के अंदर. क्लाउड एलएम के अंदर क्यों डालता हूँ? क्योंकि मैं वो सब ये सिस्टम को मॉनिटर करता हूँ इन द ऑपरेशंस पार्ट. एंड ऑल्सो I will set up a landscape where they can move the changes from quality to development. They will making changes, right? तो वो The ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट आप बोल रहे transport हो. management. That I will show you. That comes under feature. वो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इन द फीचर में है वो. Feature में टेस्टिंग ये सब हाँ करना पड़ेगा. ये सब सिखाऊंगा मैं आपको कल. आपको समझ आया ना सब? हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है. ये तो इट्स नथिंग यार, ये तो जोक है. हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं. कुछ ज्यादा नहीं है. बस आपको एक्सेस नहीं था ना. आप कंफ्यूज हो गए बस. मैं प्रोग्रामर हूँ, आपको मैंने बताया था ना. आई हाँ एम एक्स बताया था. हाँ प्रोग्रामर. आई हाँ यूज्ड टू बिल्ड एप्लीकेशन इनटू सीक्वल एंड विजुअल बेसिक, एक्सेल. ये तो बहुत है, लेकिन ये थोड़ा सीखने का तो है क्योंकि टाइम लगता है सीखने में. मतलब आप तो एक मुझे बार ये मुझे डेमो लगता है टूल. मुझे टू बिकम अ वेरी इफिशिएंट प्रोफेशनल ऑन इट, मे बी 3 महीने तो लगेंगे मेरे को. जब तक मैं 2-3 बड़े प्रोजेक्ट करूंगा तब समझ में आएगा. ये लेकिन एक ये क्या, आई प्रोजेक्ट कर थिंक लिया तो आ जाएगा. फिर भी मुझे डेमो काफी डेमो अंडरस्टैंडिंग. डेमो में डाल दो. मतलब इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस प्रोसेस एंड ऑल. यू हैव बिजनेस प्रोसेस एंड ऑल नो.
प्रोसेस ऑथरिंग, वो आपका मेन चीज, वो बताऊंगी कल। अभी आज आपको ये प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करना है, टाइम बॉक्स, टीम, सब आ गया स्कोप, समझ में। ये सब समझ, मेरे को ये भी समझना बेसिक है। ओवरव्यू समझ में आ गया सारा। अब वो हाँ। तो लाजमी बात है कि आपको एक्सेल तो आ गया, लेकिन आप कर क्या रहे हो, तो वो तो बिजनेस के ऊपर है ना। करेक्ट। वो तो जब मुझे एक्सेस देंगे ये लोग, मेरे को पता चलेगा तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन मैं उसको आई बिलीव कि आज और कल मैं पढ़ूंगा। पहले आप ये रोल एक्सेस ले लो, उसके ऊपर आप सब, एंड डेमो में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेमो में एक एक यूजर को अलग अलग रोल होता है। प्रोजेक्ट लीड के अंदर गए तो सब ये सब मिलेगा, फंक्शनल कंसल्टेंट के अंदर गए तो ये सब मिलेगा। फंक्शनल कंसल्टेंट पूछ रहे थे ना, दिखा देता हूँ इसके अंदर, डेमो के अंदर कौन। ये प्रोसेस ऑथरिंग का क्या मतलब है? व्हेन वी से ऑथरिंग, व्हाट वी सेइंग? Authoring means you're creating your own process, business process. Author, बुक का author होता है ना। हाँ जी जी जी। स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? जी दिख रहा है मेरे को। सपोज अब, लाइक, मैंने डेमो क्रिएट कर, स्क्रीन दिख रहा है, हाँ। यार, प्रोसेस हायरार्की मतलब स्टेप्स होता है आपके बिजनेस प्रोसेस के, पहले क्या करना है, समझ उसके गया। बाद क्या क्या करना आई है गॉट अंदर। इट, आई अंडरस्टैंड। प्रोसेस ऑथरिंग में यू कैन क्रिएट योर ओन बिजनेस प्रोसेस। समझ गया। सपोज ये कुछ नाम दे दो आप, डेमो, लाइक यू कैन क्रिएट बिजनेस प्रोसेस ऑफ योर ओन और क्रिएट असाइनमेंट। कुछ रेफरेंस है तो ऑलरेडी, नहीं ये कर सकते, नहीं तो क्रिएट कर सकते खुद से। ये इधर आपको आएगा क्योंकि आपके अंदर बिजनेस प्रोसेस ऑलरेडी है, मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, समझ। आई सेलेक्ट गेट इट। कंपोनेंट्स मतलब, देखो ये सिग्नावियो, आपने पूछ रहे थे ना प्रोसेस गवर्नेंस। हाँ हाँ, वो बिल्ड कर रहे हैं ना, दे देयर आर पीपल बिल्डिंग स्टफ इन सिग्नल। उसके अंदर से ले लेता है, मैं चेक करके डालता हूँ। सॉल्यूशन कंपोनेंट उसके अंदर है। क्रिएट योर ओन, दिस इज कस्टमाइजिंग योर ओन दिस थिंग, ऐड कर सकते हो। एक्सेलरेटर, कंट्री, रीजन, यूआरएल। एक्सेलरेटर मतलब there'll be one URL. From there you can put this title, whichever you want, these things and all. This is like you're creating your own custom process समझ into गया। the business process. इसके ऊपर डायग्राम क्रिएट कर सकते हो आप। डायग्राम क्रिएट करने के बाद बाजू ही, वेट, so you can create a diagram, what all steps, what all business process, how I should integrate, और उसके बाद क्रिएट करने के बाद you can create a requirement here only, it will come। ये मैं कल पढ़ के बताऊंगा। This is nothing but creating your own custom process for the business which customer wants to implement. समझ गया। This this things and all you can see, no, in your this thing, the additional information. या You can go and click on expert portal for implementation. सो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के लिए वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसमें समझ में आएगा कि किधर प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट किधर पड़े। Correct. इधर समझ। डॉक्यूमेंट्स के जाओ, अब जो जो लोग डाले हैं ना उसके अंदर, क्या क्या हम लोग क्या क्या किए, ये सब सब इसमें आ अपलोड जाएगा। अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट स्कोप, फाइनेंस के स्कोप के अंदर ये रहेगा। ये बेसिकली तो वैसे ही है ना, जैसे शेयर पॉइंट की डायरेक्टरी होती है, करेक्ट, दैट्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
ओके। व्हाट इट इज। आपको नया क्रिएट करना है तो क्रिएट करो डॉक्यूमेंट, नहीं तो अपलोड करो एक्सटर्नल फाइल से चाहिए तो। You can put a scope which under which scope you want to put your this thing. Those stuffs. Okay. Well, this process hierarchy is nothing but to use the समझ गया मैं, I got it। तो आप कल मुझे क्या बताओगे आप मेरे को कल? कल आपको मैंने क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन की साइड तो मुझे समझ में आ गया है सारा, तो कल ऑपरेशन बताओगे मुझे? ऑपरेशन बता दूं क्या? मतलब मुझे चेंज एंड डिप्लॉयमेंट आप मैनेजमेंट बताओ ना, बता आप क्या दो। बताओगे मुझे तो जो आपने भी सारा बताया है ये समझ आ गया है मुझे। है ना, अभी ज्यादा समझने के लिए मतलब और इसके अंदर कंटिन्यू करता हूँ। इन केस दे गिव यू द रोल्स, फ्यूचर रोल्स, ये मैं कल, आज तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस हायरार्की सब बता दिया। कल प्रोसेस इन डिटेल बताऊंगा। प्रोसेस ऑथरिंग क्वालिटी गेट्स आप भी एक बार पढ़ लो। टेस्ट प्रिपरेशन, रिक्वायरमेंट्स ये कैसे क्रिएट करना है, रिक्वायरमेंट मॉनिटर कैसे करना है, ये सब बताऊंगा। और चेंज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेज बताऊंगा, मतलब ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट यू आस्क्ड राइट। ठीक है, ठीक है। तो कल कल बेसिकली कल रिक्वायरमेंट और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट पे फोकस होगा। ओके ओके। ऑपरेशंस बताना चाहे तो वो भी बता दूंगा मैंने, क्योंकि ये नहीं नहीं, पूरा। कोई बात नहीं, वी डोंट हैव टू रश, कोई मसला नहीं आपका। अगर हम लोग कल रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और रिक्वायरमेंट, अगर इस पे हम करते हैं तो दैट वुड बी गुड। सो मे बी 1 वीक इसका हो जाएगा, 1 वीक वो ऑपरेशन का हो जाएगा, दैट्स गुड। हाँ, ऑपरेशंस का नेक्स्ट वीक रखूंगा। कल इम्प्लीमेंटेशन का बाकी का ये, और चेंज एंड डिप्लॉयमेंट क्योंकि उसको टाइम लगेगा इसलिए। तो आज का सब समझ में आ गया ना? कुछ हाँ डाउट्स है बिल्कुल तो बिल्कुल, बता सब दो। समझ में आ गया। अभी ये जो आपका इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ा बैठूंगा, इसको डाइजेस्ट करूंगा, अपने अपने नोट्स बनाऊंगा, फिर ये लिंक्स पे जाके देखूंगा। तो आज पूरा दिन यही करूंगा मैं। हाँ, पूरा दिन कर लो, समझ आ जाएगा। ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी बना नहीं दिया नहीं, पूरा। ये कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट हाँ, usually I get a PM role because I've been doing PM role for so long, मैं I can do it my eyes closed। ये है कि पूरा टूल ही डिफरेंट है, तो मुझे सीखना पड़ेगा कि वो इसमें कैसे मैनेज करना है, दैट्स फॉर इट इज। ये एग्जैक्टली। कि बाकी आप सब किसी काम कंपनी सेम को ही है। ज्वाइन करते हो, वो मंडे डॉट कॉम यूज कर रहा है, कोई स्मार्ट शीट यूज कर रहा है, यहाँ पे ये लोग ये यूज कर रहे हैं, दैट्स